Good afternoon all. આજના વેબ સિમ્પોઝિયમ સિરીઝ ઓફ વેબ સિમ્પોઝિયમના ચોથા અને આપણને બધાને બહુ જ મજા આવે, પૈસાની વાત આવે એટલે એવા કમર્શિયલ એસ્પેક્ટ્સ વાળા આજના સેશનમાં હું જિલ્પા શેઠ, જેમિન જ્વેલરી એક્સપોર્ટ પ્રમોશન કાઉન્સિલ વતી આપ સર્વેનું ફરી એક વખત હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. થર્ડ સેશનમાં નીરવભાઈ આપણને ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ રિસ્ક સમજાવ્યા હતા અને એમાં અલગ અલગ રિસ્કને કેવી રીતે એડ્રેસ કરવા એના ટૂલ્સ અને ટેકનિક્સ પણ આપણને સમજાવ્યા હતા બહુ ડિટેલમાં. એમાં એક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ એસ્પેક્ટ હતો કે આપણે જ્યારે ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડમાં કંઈ પણ કામ કરીએ છીએ તો ત્યારે ડોલર જે છે તે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ એસ્પેક્ટ રહે છે, એનો રોલ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ રહે છે. અને છેલ્લા 2-2.5 વર્ષમાં આપણે જોઈએ તો માર્કેટ એટલું બધું વોલેટાઇલ છે કે રેટ્સમાં ખાસ્સું ફ્લક્ચ્યુએશન આવ્યા કરતું હોય છે. તો અમારી પાસે ઘણા વખતથી આ રિક્વાયરમેન્ટ આવતી હતી. આગળ અમે આ એક સેશન કર્યો જ હતો અને આપણા આજના સ્પીકર સાથે જ કર્યું હતું, પણ ફરી એક વખત ખાસ કદાચ અત્યારની જે સંજોગો છે તેમાં એ વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ આપણને માટે સાબિત થાય, લાભદાયી બને. તો આજનો આપણે જે સેશન રાખ્યો છે તે રિસ્ક મેનેજમેન્ટ ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડમાં કેવી રીતે કરી શકાય, તેમાં હેજિંગ એક બહુ મહત્વનો ટૂલ છે અને એના વિશે આજે આપણને આપણા આજના જે સ્પીકર છે શ્રી ગોવિંદભાઈ જાર, એ આપણને એના વિશે માહિતી આપવાના છે. ગોવિંદભાઈ આમ પ્રોફેશનલી ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ છે અને સર્ટિફાઈડ ટ્રેઝરી મેનેજર છે. તેઓ એમની જે કંપની છે ફિન આઈડિયાઝ તેના પ્રમોટર છે અને પાર્ટનર પણ છે. એમની જે આ કંપની છે તે સેબી અપ્રુવ્ડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એડવાઇઝર તરીકે સર્ટિફાય થયેલી છે. 20 વર્ષથી વધારે વર્ષોનો તેમનો આ ક્ષેત્રમાં અનુભવ છે અને અંદાજે 19,000 જેટલા લોકોને એમણે આ ક્ષેત્રમાં ટ્રેન કરેલા છે. એ નેશનલી અને ઇન્ટરનેશનલી પણ ટ્રેનિંગ આપી રહ્યા છે અને ફાઇનાન્શિયલ માર્કેટ ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ્સ જે કન્ડક્ટ થાય છે 2004 થી, તેના તેઓ બહુ જ પ્રચલિત પર્સનાલિટી છે. તો આવા બહુ જ એક્સપર્ટ અને વિષય નિષ્ણાંત ફેકલ્ટી આજે આપણી વચ્ચે છે. હું આપણા સર્વે વતી શ્રી ગોવિંદજીનું સ્વાગત કરું છું અને સેશનને આગળ વધારવા માટે એમને આવકારું છું. શ્રી ગોવિંદજી. Thank you, Jilpaben. Thanks a lot for very nice introduction. Thanks a lot. So friends, I assume मेरा वॉइस एकदम परफेक्टली आप सबको सुनाई दे रहा है और पूरे सेशन को इंटरेक्टिव रखने के लिए अपन इस चैट एप्लेट का भी अच्छे से सहारा लेंगे. तो आई एज्यूम कि आपको चैट एप्लेट पे मैसेज भी आना शुरू हो जाएगा. तो बस मेरा वॉइस पहले एकदम क्लियर आ रहा है, इसका यस और नो में मैं आपसे केवल एक बार पहले जूम अपन सब यूज कर रहे हैं तो स्लो होता है, तो सम टाइम में डिस्कनेक्शन हो जाए तो ऑटोमेटिकली रीक हो जाता है
रखेगा ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। सो इसकी गोविंद जी, आपकी आवाज बंद हो गई है, बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो, તમને બધાને મારો અવાજ આવે છે ને? ગોવિંદજી, આપનો અવાજ બિલકુલ નથી આવી રહ્યો. રજત, પ્લીઝ અનમ્યુટ હિમ. या ओके, सो मैं म्यूट था। ओके, थैंक यू। तो मैं प्रेजेंटेशन स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपके साथ में। आई एज्यूम अभी आपको पीपीटी दिखाई दे रहा है? यस यस यस, वी कैन सी दिस। चलिए शुरुआत करते हैं करेंसी हेजिंग की। बहुत ही नजदीक का सब्जेक्ट है मेरे को, बहुत प्यारा सब्जेक्ट जो है वैसा सब्जेक्ट है करेंसी हेजिंग। खास तौर से उन सभी व्यक्तियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये अगले 45 मिनट, जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं, जिनका कोई ना कोई तरीके से करेंसीज में कुछ ना कुछ लेना देना रहता है, और मार्केट में करेंसी के फ्लक्चुएशन के कारण जबरदस्ती उनके बिजनेस के अंदर में फ्लक्चुएशन आना शुरू हो जाता है। तो वो लोग किस तरीके से अपने करेंसी के एक्सपोजर को हेज कर सकते हैं। अब हेजिंग करने का मीनिंग नॉर्मली जब अपन पहला इम्पैक्ट समझते हैं तो हमेशा हमको ये लगता है अच्छा हेजिंग है, इसका मतलब कुछ ना कुछ खर्चे का घर होगा। तो फ्रेंड्स, ऐसी हेजिंग भी अवेलेबल है जहाँ पे खर्चा नहीं, उल्टा सामने से कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी भी खड़ी होती है, और उसके बावजूद हमारी रिस्क जो है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। तो बहुत अच्छे से इंटरेक्टिव वे में अपन इसको समझ रहे होंगे। आप लोगों का रिप्लाई मुझे थोड़े थोड़े टाइम पे चाहिएगा, तो आप सब लोग साथ में रहिएगा मेरे। कुछ एक दो इंसिडेंट्स जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। BMW ने अभी थोड़े टाइम पहले ही पता चला कि उसकी सेल्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और उसके बावजूद भी उसने लॉस रिपोर्ट किया था। और उसका जो सबसे बड़ा कारण था वो ये था कि मार्केट के अंदर में जो करेंसी फ्लक्चुएशंस आए उसके कारण से, बिकॉज हेजिंग पूरी प्रॉपर नहीं थी, तो उन्होंने सामने से प्रॉफिट की जगह पे लॉसेस खड़े कर दिए, और 27% ऑपरेटिंग लॉस उन्होंने रिपोर्ट किया था $2 बिलियन का, बिकॉज ऑफ दिस करेंसी फ्लक्चुएशन। और द सेकेंड एग्जाम्पल जो अपन सबको पता है HCL टेक का, वन ऑफ द लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी, 17% प्रॉफिट ड्रॉप हुआ बिकॉज ऑफ करेंसी फ्लक्चुएशन। क्वार्टर का जो प्रॉफिट था वो एक क्वार्टर के अंदर में 71% प्रॉफिट ड्रॉप हो गया, ऑलमोस्ट जो प्रॉफिट बचा वो 141 करोड़। तो मुद्दा ये हो गया था कि यदि करेंसी का जो हेजिंग है वो पार्ट अच्छे से नहीं मैनेज किया जाए तो कई बार हमारा बिजनेस पूरा का पूरा बहुत अच्छे से चल रहा होता है, पर पता चलता है कि एक अननोन वायरस के कारण से अपने सब इम्पेक्टेड हो चुके हैं। तो द सेम वे ये फॉरेक्स का जो फ्लक्चुएशन है वो हमारे लिए एक अननोन वायरस नहीं बने, तो उसके लिए जरूरी है कि उसको भी पहले से ही कंट्रोल में कर लिया जाए, और वो कंट्रोल में करते ही अपना पूरा काम हो सकता है। 141 करोड़ के प्रॉफिट में 300 करोड़ रुपए का केवल एक्सचेंज का लॉस। तो अपन को ये भी अच्छे से समझ में आ रहा होता है कि हमारा जो एक्सपोजर खड़ा होता है हमारे बिजनेस में, उस एक्सपोजर के अंदर में करेंसी का फ्लक्चुएशन कितना ज्यादा बड़ा इम्पेक्ट कर रहा होता है। थोड़ा सा मूवमेंट भी बहुत इम्पेक्ट करता है, और अभी तो जो डॉलर में लगातार मूवमेंट हो रहे हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हेवी लेवल पे होते जा रहे हैं। क्या क्या फ्लक्चुएशन के अंदर में रिस्क होती है, तो अधिकतर लोगों का ये मानना होता है कि भाई हम तो नॉर्मली अपना एक्सपोजर हमेशा कंट्रोल में रखते हैं तो हमें कोई रिस्क नहीं आती है। ये जो सीन है ना, इसमें दो गाड़ियां तो जो सीधे चल रही थी वो एकदम कंट्रोल में चल रही थी, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं था।
पर जो तीसरी गाड़ी है उसी ने सारा प्रॉब्लम क्रिएट किया था, जिसके कारण से बिना चाहे बिना कुछ सोचे अपने को रिस्क खड़ा हो गया है। तो जो जिस तरीके से ऐसी एक्सीडेंट वाली जो रिस्क होती है उसमें अपने को सीट बेल्ट काम करता है, उसी तरीके से ही जब नीरव भाई ने रिस्क मैनेजमेंट का सेशन लिया है तो उन्होंने कंफर्म ये चीज अच्छे से समझाई है कि क्या क्या तरीके की रिस्क होती हैं। कुछ रिस्क होती हैं जो हमारे कंट्रोल में होती हैं और बहुत ज्यादा कई टाइप की ऐसी रिस्क होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, तो उनको हम किस तरीके से हेज में ला सकते हैं, कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं। तो हमको अच्छे से पता है बड़े एक्सीडेंट से बचने के लिए छोटे छोटे से सीट बेल्ट बहुत बड़ी अपने लिए एज खड़ी कर देते हैं। तो द सेम वे करेंसी हेजिंग हमारे लिए क्या करता है, तो सबसे पहले तो करेंसी हेजिंग हमारे को जो बॉटम लाइन ग्रोथ है वो दिलाता है। इसका मतलब मैंने कोई एक माल बनाया है जिस माल की कॉस्टिंग मुझे 90 रुपए पड़ रही है और यदि मैं उसको 100 रुपए में बेच रहा हूं तो मेरा सपना ये होता है कि मुझे 10 रुपए का प्रॉफिट मिलने वाला है। तो वो 10 रुपए का प्रॉफिट मेरा इंटेक्ट रहे, उसके लिए जरूरी है कि यदि मैं फॉरेक्स में कोई ट्रांजेक्शन कर रहा हूं तो मुझे मेरी करेंसी को हेज कर लेना चाहिए। तो अब मार्केट कितना भी मूव करे मेरा 10 रुपया इंटेक्ट रहेगा। आगे आने वाली स्लाइड्स में अपन ये भी समझेंगे कि वो 10 रुपया इंटेक्ट भी रहेगा और कल को यदि आपकी करेंसी फेवर में चली जाए तो आप एक्स्ट्रा कमाओगे भी, लेकिन 10 रुपए को कम नहीं होने देंगे। वो कैसे किया जा सकता है वो अपन आगे समझेंगे। सेकेंड पॉइंट में कि जो बैंक्रप्सीज आ जाती हैं तो कितनी ऐसी कंपनीज हैं जो बिकॉज ऑफ करेंसी फ्लक्चुएशन के कारण से इतने हेवी लॉसेस कर गई कि पता चला बिजनेस पूरा का पूरा उनका बैंकरप्ट हो गया और प्रोजेक्ट कई बार अनवायबल हो जाते हैं। कि कई बार मैंने अपने क्लाइंट से सुना हुआ है कि यार जब बिजनेस करने का प्लान बनाया था उस समय पे $65 था और अब जब तक मशीनें मेरे पास आने वाली है ना तब तक मैं पता चल रहा है $72 हो गया है। तो मेरी तो जो बिजनेस की वायबिलिटी थी वही खत्म हो गई है पूरे प्रोजेक्ट की, क्योंकि इतना ही तो प्रॉफिट था जो मैं कमाने वाला था। तो अब क्या क्या है, तो पहले समझते हैं कि इंपोर्टर्स को क्या क्या रिस्क होती है, फिर अपन एक्सपोर्टर्स के लेवल पे समझते हैं। इंपोर्टर को एकदम सिंपल देसी रिस्क है कि डॉलर यदि 68 चल रहा हो, उसने इंपोर्ट किया हो और जिस दिन पेमेंट करने को आए उस दिन यदि डॉलर 74 हो गया तो पता चलेगा कि उसने लॉसेस कर दिए, क्योंकि 68 के भाव से उसने पेमेंट करने का सोचा था। मानो $1,00,000 का उसने इंपोर्ट किया तो उसका ये सोचना था कि मैं 68 लाख टोटल पेमेंट करने वाला हूं और उस 68 लाख की जगह पर जिस दिन उन्होंने पेमेंट किया तब तक में डॉलर 74 हो गया था। तो अब उनको 74 लाख पे करने को आ रहे हैं। अल्टीमेटली उन्होंने 6 लाख रुपए का एडिशनल रिस्क खड़ा कर दिया या उनके अकाउंट के अंदर में लॉस खड़ा हो रहा है। तो इंपोर्टर को रिस्क होती है जब डॉलर बढ़ जाए। साइमल्टेनियसली उसी तरीके से ही एक्सपोर्टर्स को क्या रिस्क होती है, तो एग्जैक्टली इसका रिवर्स। अक्टूबर 2018 में जो 74 का डॉलर था वो दिसंबर तक आते आते 69 हो गया। तो जब उसने एक्सपोर्ट किया था तो उसको ये फील था कि यदि मैंने $1,00,000 का माल एक्सपोर्ट किया है आई एम गोइंग टू रिसीव 74 lakhs। लेकिन जब तक उसको डॉलर रिसीव होने का टाइम आया तब तक में डॉलर 69 आ चुका था, तो वो 74 की जगह पे उसको 69 लाख रुपीज ही मिल रहे हैं। तो बिकॉज ऑफ फॉल इन द डॉलर प्राइस अब उनको 5 लाख रुपए का डॉलर के अंदर में रिस्क आ गया या उनको लॉस हो रहा है। तो एक्सपोर्टर को क्या रिस्क है, एक्सपोर्टर को रिस्क है कि जब डॉलर का प्राइस टूट जाता है तो एक्सपोर्टर लॉस कर रहा होता है, डॉलर का प्राइस बढ़ जाता है तो इंपोर्टर लॉस कर रहा होता है। तो अब अपना ऑब्जेक्टिव क्या है, बहुत अच्छे से समझने जैसा है फ्रेंड्स। इस ऑब्जेक्टिव को, अपना ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर है कि जब मार्केट में हमको डॉलर जितना हमने डिसाइड किया हुआ उतना हमको मिल जाए या जितना हमने नक्की किया हुआ उतना ही हमको पे करने को आए, अगर इतना काम हो जाए तो मेरा एक बहुत बड़ा काम शुरुआत में हो सकता है। एडिशनल क्या है, तो अब कई लोग हैं जो अनहेज रहते हैं अपनी पोजीशन को, तो जिन लोगों ने हेजिंग नहीं किया हुआ होता है तो 74 का डॉलर 68 हुआ तो उन्होंने लॉस किया, 68 का डॉलर यदि 74 हुआ तो इंपोर्टर ने लॉस किया, जो अभी अपने पहले वाली स्लाइड में समझा है। अब सेकेंड पॉइंट आता है कि उन्होंने हेज किया है, लेकिन हेजिंग की है उन्होंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से, जो नॉर्मली सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है कि बैंक के थ्रू हम लोग तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं।
सुनने में ये अच्छा लग रहा होता है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो हमारी हेजिंग हो गई, पर सचमुच में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से हमारी हेजिंग होती नहीं है। होता ये है कि अभी मान लो 70 रुपीज का डॉलर चल रहा है और मैंने $1,00,000 का माल एक्सपोर्ट किया, तो $1,00,000 का माल एक्सपोर्ट किया, 70 रुपए का भाव था, तो मुझे ये पता था कि 70 लाख रुपए मुझे मिलने वाले हैं। मार्केट बढ़ गया और मैंने फॉरवर्ड हेजिंग की हुई थी, तो सचमुच में मार्केट जितना बढ़ा उतना मुझे फॉरवर्ड में लॉस हो रहा है। लेकिन जिस कंट्री को मैंने एक्सपोर्ट किया है वहां से पेमेंट करने वाले व्यक्ति को ये फील हो रहा है कि आई हैव मेड मनी, क्योंकि भाई साहब आपने जब मुझे बेचा था माल तब तो 70 का भाव था, अब वो 70 वाला 74 हो गया है, तो आपको तो वैसे ही डॉलर में ही अच्छा मिल रहा है, तो मुझे थोड़ा सा उसमें कंसेशन दो। जबकि सचमुच में हमने तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, तो हमको कोई एडिशनल बेनिफिट उसका हुआ ही नहीं। जितना हम डॉलर के फ्लक्चुएशन का एडिशन में कमाए थे उतना फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में हमने लॉस कर दिया। और द सेम वे कल को अगर वो टूटता है तो भी यही सिनेरियो होता है। तो यदि हमने हेजिंग की हुई होती है फॉरवर्ड से, अब अगर मैं इंपोर्ट किया हुआ हूँ, डॉलर 74 का 68 हुआ, तो डॉलर का भाव रियल में टूटा, तो डॉलर का भाव टूटा तो मुझे ऐसे तो दिखने के अंदर में एकदम क्लियर ऐसा दिख रहा होता है कि मुझे अब कब पेमेंट करने को आने वाला है, कम पेमेंट करने को आने वाला है। लेकिन क्योंकि मैंने फ्यूचर के साथ हेजिंग कर ली है, तो जितना मुझे कम पेमेंट करने को आने वाला है उतना का उतना पेमेंट अब मुझे वापस डॉलर के नाम पे करने को आ जाएगा, क्योंकि मैंने फ्यूचर्स के थ्रू हेजिंग की हुई है। यस और नो? वेरी नाइस, वेरी गुड। मीनिंग ये हुआ फ्रेंड्स कि मार्केट के अंदर में मैं इंपोर्टर था, डॉलर का प्राइस टूटा तो मुझे वो गेन मिला, लेकिन जितना गेन मिला क्योंकि मैंने सामने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, इसका मतलब मैंने फ्यूचर्स खरीद रखे थे बिकॉज आई वाज ए इंपोर्टर, तो अब वो डॉलर टूटा तो वहां मुझे उतना ही नुकसान आ गया। और उधर जो मुझे नुकसान आ रहा है उसका एक बड़ा प्रॉब्लम और हो रहा है, वो हो रहा है मार्क टू मार्केट लॉस, M2M लॉस। तो ये M2M लॉस का मीनिंग ये कि अगर मैंने फ्यूचर्स के साथ हेजिंग की हुई है, डॉलर टूट रहा है, तो मुझे अपने बिजनेस से M2M लॉस के नाम पे नया पैसा भरने को आ रहा है। और वो M2M लॉस यदि मैं भरता जाता हूं तो कई बार ये होता है कि M2M लॉस के लिए यदि मेरे पास में प्योर पैसा नहीं होता तो मेरी पोजीशन एक गलत लेवल के ऊपर कट जाती है, तो बिजनेस भी अनवायबल हो जाता है, और मेरा वो जो फॉरेक्स का काम था जो हेजिंग का, वो हेजिंग उल्टा मेरे लिए डेंजर हो गया। कैसे हो गया उसको आगे अपन समझेंगे, पर द सेम वे अभी एक एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्टर का सपना होता है कि भाई यदि मैंने डॉलर को 68 के ऊपर में भाव में मैंने एक्सपोर्ट किया है और मार्केट अब 74 हो गया, तो वैसे उसको डॉलर में प्रॉफिट हो रहा होगा, पर क्योंकि अगर उसने फॉरवर्ड से हेजिंग कर रखी हो या फ्यूचर से हेजिंग कर रखी हो, तो जितना वो गेन हुआ है डॉलर का वो वहां पे वापस नुकसान के नाम पे चला गया। तो लोगों की नजर के अंदर में तो ऐसा दिख रहा है, मेरे कस्टमर की नजर में कि आई मेड मनी, लेकिन रियल में मैंने कोई पैसा बनाया ही नहीं। और अगर फ्यूचर्स का M2 तरीके से नहीं भर दिया तो वापस मैंने रिस्क खड़ा कर लिया। तो इसके ऊपर में एक बहुत ही मजेदार कहानी है, छोटी सी कहानी है, पर इस कहानी को अच्छे से सुनना। एक चूहा था, उस चूहे को एक मच्छर ने काट लिया। मच्छर ने उसको काटा तो चूहा एकदम परेशान, चूहा कोशिश कर रहा था उस मच्छर को पकड़ने के लिए, लेकिन वो पकड़ नहीं पा रहा था। तो अब उसने डिसाइड कर लिया कि मुझे इस मच्छर को खत्म ही करना है, मुझे बहुत परेशान कर रहा है, लगातार मुझे काट रहा है, मुझे खत्म करना है। तो अब इस चूहे ने क्या किया, ये चूहा तुरंत ही गया बिल्ली के पास और बिल्ली से जाके दोस्ती कर रहा है, और बिल्ली के साथ ये दोस्ती कर रहा है कि तुम मुझे मदद करो कि उस मच्छर को मारना है। तो चूहे को अभी ये नहीं पता है कि ये मच्छर को मारने में तो शायद बिल्ली मदद कर देगी, पर एक बार ये मच्छर के मरने के बाद में अगला नंबर किसका आने वाला है। तो कई बार हमको लग रहा होता है जो खुली नजर से कि ये मेरे लिए फायदेमंद काम होगा, पर वो फायदेमंद काम बाद में अपने लिए कितना बड़ा डिजास्टर बन सकता है, वो हमें, मेरी एक बार रिक्वेस्ट है, 1 मिनट मैं रिस्ट्रिक्ट कर देता हूँ सबको, काफी लोग अनोटेट कर रहे हैं इसके ऊपर में, तो आप कुछ भी स्क्रीन के ऊपर में अपने फिंगर्स को मूव ना करें, और या फिर अब आप लोग आराम से मूव करें, कोई बात नहीं है, मैंने स्ट्रिक कर दिया यहाँ पे आपको। सो मुद्दा चल रहा था कि मच्छर के साथ में जो दोस्ती हुई थी, तो वो मच्छर की दोस्ती बाद में अपने को भारी पड़ सकती है, सॉरी बिल्ली के साथ जो दोस्ती हुई थी
वो बाद में अपने को भारी पड़ सकती है। द सेम वे स्टोरी को अब अपन M2M लॉस के साथ में जोड़ करके फ्यूचर्स के साथ जोड़ सकते हैं। फ्यूचर्स के थ्रू हेजिंग करते हैं तो हमको ये तो लग रहा होता है शुरुआत में तो कि हमारी करेंसी का अब जितना भी रिस्क है ना, अब ये टेक का और हो जाएगा अपने आप, इसकी टेंशन खत्म। लेकिन पता चलता है बाद में वो फ्यूचर के थ्रू जो हेजिंग की हुई थी वो हेजिंग ही हमको भारी पड़ गई, क्योंकि रोज ब्रोकर का फोन आता है, भैया डॉलर चेंज हो गया, M2M का लॉस आ रहा है, इतने रुपए का चेक भेजो वरना पोजीशन कट जाएगी। तो पता चला मच्छर से ज्यादा भारी तो मुझे वो हेजिंग चढ़ पड़ गई है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हेजिंग ऐसी चीज होनी चाहिए जैसे इंश्योरेंस होती है कि हमने एक प्रीमियम भर दिया, भर करके हम भूल जाते हैं, पूरे साल हम अपनी गाड़ी चला रहे होते हैं, हमको वो प्रीमियम याद भी नहीं आता है, अचानक कोई दिन एक्सीडेंट होता है तो हमको को तुरंत याद आ जाता है कि पॉलिसी ली हुई है, अपना क्लेम ले लो। और यदि कुछ नहीं होता है तो पूरे साल के अंदर वो प्रीमियम गया तो गया, वो एक छोटी अमाउंट चली गई तो चली गई, पर उसके कारण से हम पूरे साल एकदम रिलैक्स थे कि हमको पता था कि हमारे को बेनिफिट हो सकता है, हमारे को लॉस नहीं हो सकता। यदि कोई भी कारण से कोई भी तरीके का नुकसान हुआ तो ऑटोमेटिकली इंश्योरेंस से देख लिया जाएगा। तो क्या इतना सिंपल करेंसी की हेजिंग हो सकती है क्या? तो हमारा इसके लिए आंसर है कि यस, करेंसी हेजिंग इतनी ही सिंपल है। हमने उसको बहुत ज्यादा कंफ्यूज किया है और आज हमारे पास में एकदम सही मौका है इस पूरे के पूरे पॉइंट को एकदम अच्छे से डिटेल में समझने का कि हम करेंसी हेजिंग को एकदम सिंपल कैसे बनाएं कि वो सिंपल भी हो जाए, वो लो कॉस्ट पे भी हो जाए और बेनिफिट सारे मेरे हो जाए। मतलब यदि मैं 70 में डॉलर एक्सपोर्ट कर रहा हूं, कुछ भी माल एक्सपोर्ट किया, पेमेंट वाले टाइम यदि 75 का भाव हुआ तो प्रॉफिट मेरा होना चाहिए। लेकिन पेमेंट वाले टाइम पे अगर डॉलर 65 हो गया तो लॉस की भरपाई मुझे मिल जानी चाहिए मेरी इंश्योरेंस कंपनी से। सुनने में जितना सिंपल है, अब आगे अपन एक एक स्टेप बाय स्टेप उसको लेके जाएंगे और अपन समझेंगे कि क्या रियल में इतनी सिंप्लिसिटी से ये काम हो सकता है क्या। तो आई एज्यूम आप सब रेडी हो, यस और नो? एक ऐसा तरीका समझने के लिए कि मार्केट का फेवर पूरा हमारा हो जाना चाहिए और मार्केट में यदि अनफेवरेबल सिचुएशन आई तो लॉस हमारा नहीं होना चाहिए। वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। आप सब लोग ऐसे पार्टिसिपेट करते रहिए तो मैं इस पूरे के पूरे सेशन को बहुत अच्छे लेवल तक, बहुत आगे तक ले जाऊंगा इसको आराम से। तो अब आइडियल हेज फॉर नेट इंपोर्टर क्या है वो समझते हैं। तो आइडियल हेज फॉर नेट इंपोर्टर ऐसा है, मानो आप ऐसा एज्यूम कर लो एक बार कि आप एक इंपोर्टर हो, आपने कोई दूसरी कंट्री से $1,00,000 का माल इंपोर्ट किया है। $1,00,000 का माल इंपोर्ट किया है तो आपको अब उस डॉलर का पेमेंट करना है थोड़े समय के बाद में। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए डॉलर 69.5 चल रहा था जिस दिन आपने इंपोर्ट किया, तो आपका सपना ये था कि भाई मुझे 69.50 लाख रुपीस का पेमेंट करने को आएगा 3 महीने में। अब आपका एक्सपेक्टेशन ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है कि कल को यदि डॉलर 67 हो जावे जिस दिन मैं पेमेंट करने जाऊं तब, तो डॉलर यदि 67 हो जाए तो मैं 67 लाख ही पे करूं, क्योंकि डॉलर का भाव टूट गया उस दिन। तो भाव टूट गया है और मैंने इंपोर्ट $1,00,000 का माल किया था, अब डॉलर का भाव 67 है तो 67 में मैंने अपना परचेज किया डॉलर और पेमेंट कर दिया, तो 69.50 लाख की जगह मुझे 67 लाख रुपीस का ही पेमेंट करना पड़ा। और कल को उसके उल्टे साइड में डॉलर का भाव गलती से 71 हो जाए, तो डॉलर का भाव यदि 71 हो गया तो अब आपको कितना पेमेंट करने को आना चाहिए लॉजिकली? डॉलर का प्राइस 71 हो गया है, आपने $1,00,000 का माल इंपोर्ट किया है, जिस दिन आप पेमेंट करने जा रहे हो उस दिन भाव 71 है, तो आपको ओवरऑल कितना पेमेंट करने को आएगा? वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपको 71 लाख पेमेंट करने को आने वाला है। लेकिन अगर मेरे पास में प्रॉपर हेजिंग हो, जिसको हम रियल में हेजिंग बोलते हैं, तो मेरे को सचमुच में 69.50 लाख ही पे करने को आना चाहिए। मतलब फायदा यदि हुआ तो वो मेरा और नुकसान यदि हुआ तो वो मेरा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इसके लिए मैं एक प्रीमियम पे करूंगा
और वो प्रीमियम पे करके मैं ये गारंटी लूंगा कि डॉलर का भाव टूट गया तो मुझे बेनिफिट मिल गया, भाव बढ़ गया तो मेरा रिस्क नहीं है, भाव कितना भी ऊपर चला जाए मुझे तो 69.50 लाख ही चुकाने हैं। और जो तीसरा पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो होता है मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट। सचमुच में कई बार मुझे बहुत ज्यादा शॉक लगता है जब मैं किसी क्लाइंट को मिलने जाता हूँ और उसके जो मेन ओनर होते हैं, उस ग्रुप के मेन ओनर उस समय पे एकदम सीएनबीसी की टीवी स्क्रीन पे बैठे होते हैं और वो डॉलर के भाव को देख रहे होते हैं और वो दिन भर जब आते हैं ऑफिस में और जब जाते हैं तब तक वो डॉलर के भाव को ही मैच कर रहे होते हैं बैठ के। तो पता चलता है हम अपने बिजनेस की ग्रोथ के बारे में कब सोचने वाले हैं, हमारा पूरा का पूरा इन्वॉल्वमेंट तो बस डॉलर को हेज कैसे करना है उस पर लग चुका होता है। तो लॉजिकली वो हेजिंग इतनी सिंपल होनी चाहिए कि मैनेजमेंट का एकदम लीस्ट इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। लीस्ट इन्वॉल्वमेंट का मतलब एक बार डिसीजन ले लिया 3 4 5 महीने तक का भाव देखने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। मैटर क्लियर, पॉइंट एक ही है, डॉलर मेरे फेवर में आया तो फायदा मेरा और डॉलर मेरे अगेंस्ट में गया तो नुकसान मेरा नहीं। और उसकी क्या कॉस्ट लग रही है वो नक्की करो और नक्की करके अब अगले 3 4 महीने के लिए आराम। सेम इसका एग्जैक्ट रिवर्स वापस अपन पूरा का पूरा चेक कर लेते हैं तो फिर वही आइडियल जो नेट एक्सपोर्टर की जो एजिंग होती है एग्जैक्ट इसका रिवर्स है। आप लोग एक्सपोर्टर हैं अधिकतर लोग, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ, तो आप लोग एक बार मुझे क्विकली इसमें बता सकेंगे इंपोर्टर है या एक्सपोर्टर है, नॉर्मली आपका प्रोफाइल ज्यादा एक्सपोजर कौन सा रहता है, इंपोर्ट का या एक्सपोर्ट का? इंपोर्ट या एक्सपोर्ट तो आईएमपी या एक्सपोर्ट का ई लिख सकते हो और इंपोर्ट के लिए आई लिख सकते हो। तो क्या है, ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड, वेरी नाइस। तो इंपोर्टर भी है एक्सपोर्टर भी है, बोथ भी हैं। ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी नाइस। तो अच्छा है, इसका मतलब दोनों तरफ के ये प्रेजेंटेशन बना हुआ दोनों प्रोफाइल के हिसाब से ही है। तो इंपोर्टर और एक्सपोर्टर यदि आप दोनों हैं तो आपको बहुत मजा आएगा पूरा का पूरा इस प्रेजेंटेशन को समझने का। तो एक्सपोर्टर के लिए एकदम क्विकली, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर योर रिप्लाई। एकदम क्विकली हमने $1,00,000 का एक्सपोर्ट किया माय डियर फ्रेंड 69.5 में। तो अपना ड्रीम ये रहता है कि अब मेरे को 69.50 लाख मिलने वाले हैं। तो डॉलर कल को 67 हो जाए तो मेरे को मेरा 69.50 तो मिलना ही चाहिए और डॉलर कल को 71 हो जाए तो मुझे 71 लाख मिलने चाहिए। बस ये प्रोफाइल होना चाहिए और ऊपर से वापस वही मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट एकदम लिस्ट हो जाना चाहिए। ये अगर हेजिंग होती हो तो उसको हम लोग बोलते हैं कि दैट इज कॉल्ड रियल हेजिंग। अदरवाइज तो वो पेयर ट्रेडिंग है जिसके अंदर में एक जगह पर लॉन्ग पोजीशन करते हैं दूसरी जगह उतना ही शॉर्ट कर देते हैं, तो हमको ये लग रहा होता है कि ये तो हेज हो गया, पर वो रियल में हेजिंग का अपने को कोई बेनिफिट नहीं मिला, पर यहाँ पर हमको वो बेनिफिट मिल रहा होता है। तो अब मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्शंस। तो ऑप्शंस के अंदर में वैसे ही ऑप्शंस वर्ड आपने सुना होगा और जिन लोगों के लिए भी नया शब्द है तो उन लोगों को मैं थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ ऑप्शंस, कॉल एंड पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन का मतलब होता है राइट टू परचेज और पुट ऑप्शन का मतलब होता है राइट टू सेल। एकदम घबराने की जरूरत नहीं है, मैं इसको पूरा देसी लैंग्वेज के अंदर समझाता हूँ। कॉल ऑप्शन का मतलब है यदि बाजार ऊपर जाए तो उस साइड का मुझे इंश्योरेंस मिल जाना चाहिए। तो भाव यदि बढ़ने पे आपको रिस्क आती हो तो मुझे कॉल बाई करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल इंपोर्टर्स, जो इंपोर्ट करता है उसको प्रॉब्लम ये होती है कि इंपोर्ट करने के बाद यदि डॉलर का भाव बढ़ गया तो उसे रिस्क आती है, तो वो ये बोलता है कि मुझे कॉल खरीद लो अगर आप, तो आपके लिए उसका इंश्योरेंस बाई हो गया। और पुट ऑप्शन का मतलब होता है डाउन साइड का इंश्योरेंस, भाव यदि डॉलर का टूटे तो मुझे अगर रिस्क आती हो तो मुझे पुट खरीदने को आएंगे। अब ये अगर मैं इंश्योरेंस खरीदता हूँ ये, तो इन ऑप्शन को खरीदने के लिए मुझे प्रीमियम पे करना पड़ता है, वो प्रीमियम ही मेरा मैक्सिमम रिस्क है माय डियर फ्रेंड्स। तो वो लिमिटेड रिस्क हो जाती है मुझे, कल को यदि मेरा सोचना सही नहीं गया तो जितना प्रीमियम मैंने पे किया उतना ही मुझे रिस्क आएगा। वो प्रीमियम की कॉस्ट कितनी होती है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। और मार्केट अब अगर फेवर में चला गया, तो जो प्रीमियम चुकाया उतना गया पर बाकी का पूरा फेवर मुझे मिल गया। फॉर एग्जाम्पल 70 रुपए के अंदर में मैंने डॉलर एक्सपोर्ट किया है माल $1,00,000 का, तो मुझे 70 लाख रुपए आने चाहिए थे और मैंने मान लीजिए 50,000 रुपए का इंश्योरेंस प्रीमियम मेरा लगा। तो अब यदि डॉलर का भाव 75 हो गया
तो अब मुझे 75 लाख रुपए मिलने वाले हैं, वो 50,000 रुपए का जो इंश्योरेंस था वो यूज नहीं हुआ, क्योंकि नुकसान हुआ ही नहीं, तो वो प्रीमियम मेरा चला गया 50,000, पर अब मुझे पूरे 75 लाख मिल रहे हैं। और बाई प्लस चांस कल को डॉलर का भाव 65 हो जाए, तो जितना भाव टूटा उतना ये प्रीमियम जो इसने लिया है वो मुझे वापस डिफरेंस देगा। तो बाजार में भाव 5 लाख रुपए टूट गया मेरी वैल्यू का, तो 5 लाख मुझे वापस मिल जाएंगे उस 50,000 रुपए चुकाने के कारण। तो यदि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो क्लेम मिल जाएगा, एक्सीडेंट नहीं हुआ तो प्रीमियम चला जाएगा। यहाँ पे एक्सीडेंट का मतलब है डॉलर का भाव बढ़ जाना, सॉरी एक्सपोर्टर है डॉलर का भाव घट जाना, घट गया तो आपको क्लेम मिल गया, बढ़ गया तो आपको कोई नुकसान नहीं हुआ, खाली प्रीमियम चला गया। तो मीनिंग क्या हुआ, अगर ऐसी सिचुएशन हो गई तो आपके लिए खाली प्रीमियम आपका मैक्सिमम पे आउट हो गया, और बाद में अब जितना भी डिफरेंस आता है मूवमेंट में वो सारा का सारा आपका गेन है, और उस गेन को भी एक्स्ट्रा गेन कैसे बनाना है वो अपन आगे और समझेंगे। सेम उसी तरीके से नेट अगर इंपोर्टर है अब ऑप्शन के लिए तो अच्छे से समझने जैसा पॉइंट है, 69.50 का डॉलर का प्राइस चल रहा है, 3 महीने के बाद मान लीजिए मुझे पेमेंट आने वाला है, तो मुझे आज महीने का एक 65 पैसे का प्रीमियम अभी चुकाने को आ रहा है। ये 65 पैसा यदि मैं चुकाता हूं तो मुझे ये गारंटी मिलती है कि डॉलर यदि 69.5 से ऊपर गया तो जितना ऊपर गया उतना डिफरेंस मुझे वापस मिल जाएगा। मैं इंपोर्टर हूं। डेनिश भाई प्रीमियम रेट वगैरह क्या है वो सब मैं आपको थोड़ी सी देर में आगे समझाने वाला हूं, अभी मैं बता दूंगा आपको, है ना। तो यहाँ पर क्या मुद्दा हुआ, यहाँ पे इस एग्जाम्पल के लिए ऐसा समझना कि उसने 65 पैसे का प्रीमियम भरा, और 65 पैसे का प्रीमियम भर के उसको ये राइट मिल गया है कि मैं इंपोर्टर हूँ, डॉलर का भाव बढ़ा तो डिफरेंस मिल जाएगा अपने आप मुझे यहाँ से, और यदि डॉलर का भाव घटा तो मेरा नुकसान ये 65 पैसा ही है, उसके अलावा जितना भी टूटा वो पूरा का पूरा मुझे बेनिफिट मिल जाएगा। और द सेम वे यदि एक्सपोर्टर होता है तो एक्सपोर्टर की हेजिंग कॉस्ट इंपोर्टर से थोड़ी कम होती है, क्योंकि फ्यूचर का फॉरवर्डिंग रेट चल रहा होता है, तो वो फॉरवर्डिंग का बेनिफिट एक्सपोर्टर्स को मिलता है। तो यहाँ पे कल को यदि मैंने 69.50 के अंदर में डॉलर एक्सपोर्ट किए हैं तो मुझे लगभग 30-35 पैसे में हेजिंग मिल रही है। ये हेजिंग लेते ही मुझे ये हक मिल गया है कि यदि डॉलर टूटा तो जितना टूटेगा उतना क्लेम मुझे वापस मिल जाएगा, क्योंकि डॉलर टूटा है तो मेरे को नुकसान हो रहा है, मुझे अब पैसे कम मिल रहे हैं भविष्य में। और डॉलर यदि बढ़ जाए तो जितना डॉलर बढ़ गया वो पूरा का पूरा मेरा गेन है, खाली ये प्रीमियम मेरा नुकसान हो गया है। ये प्रीमियम कंटिन्यूअसली अलग अलग टाइम पे चेंज होते हैं, पर वो चेंज होकर के क्या रेट चलती है उसकी लाइव स्क्रीन अपन आगे समझ लेंगे। अभी पहले एक इससे बड़ा पॉइंट है जो समझने जैसा है, वो ये है कि अगर महीने की महीने में प्रीमियम चुकाता हूं तो मेरे को महीने की महीने का फ्लक्चुएशन कमाने का बेनिफिट मिलता है। माय डियर फ्रेंड, बहुत अच्छे से इस एग्जाम्पल को आपको समझना है। मान लीजिए आप एक इंपोर्टर हैं, आपने जब इंपोर्ट किया उस समय पे डॉलर का भाव 74 था, तो आपको ये समझ में आ रहा था कि मुझे 74 लाख रुपीस मिलने वाले हैं भविष्य में 3 महीने के बाद। अक्टूबर में आपने इंपोर्ट किया, जनवरी में आपको पेमेंट आने वाला था। बीच में ये हुआ कि 74 का भाव, अच्छा आपने हेजिंग कर ली, हेजिंग की तो आपने ये 74,000 का प्रीमियम चुका दिया। 74,000 का प्रीमियम चुकाया तो आपको ये हक मिल गया कि यदि डॉलर का भाव 74 से बढ़ा तो जितना बढ़ेगा उतना जो नुकसान होने वाला है वो वापस इस 74,000 जिससे आपने खरीदा है वो आपको वापस डिफरेंस देगा। तो मतलब एक्सचेंज आपको डिफरेंस देगा। यहाँ पे एक्सचेंज का मतलब है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, हम एक्सचेंज से ये पूरी हेजिंग कर सकते हैं लाइव बेसिस पे। तो एक्सचेंज आपको ये डिफरेंस देगा, और कल को यदि डॉलर का भाव टूट गया तो मेरा मैक्सिमम रिस्क ये 74,000 लग गया, लेकिन अब जितना टूटा वो बेनिफिट मेरा हो गया। तो आप समझना, बाजार यदि 74,000 आपने चुकाए थे, 74 का भाव 72 हो गया, इसका मतलब इंपोर्टर को तो फायदा हो गया, क्योंकि अब उसको डॉलर 72 में खरीदने को आने वाले हैं। तो ये 74,000 का प्रीमियम लगा तो ये मैंने -74,000 लग दिया यहाँ पे कैश फ्लो में, क्योंकि शुरुआत में मेरे 74,000 लग गए थे। पर बाजार जब टूटा तो क्योंकि अब टूटा तो मुझे 2 लाख रुपया सस्ता मिलने वाला है डॉलर,
तो 2 लाख रुपया सस्ता मिलने वाला है और अब अगले महीने में मुझे वापस हेजिंग लेनी पड़ेगी। अब भाव चल रहा है 72, तो अब मैंने 72 की हेजिंग ले ली, तो अब मुझे 72,000 और लगे, तो 2 लाख रुपया मुझे बेनिफिट हो गया, क्योंकि अब मुझे 72 से ऊपर डॉलर नहीं खरीदने को आने वाला एक महीने बीच में ही, और 72,000 नए लगे, तो मेरे पास 1,28,000 रुपया सामने से जमा हो गया, ये मुझे बेनिफिट मिल गया। अगले महीने में भाव डॉलर 72 का 69 हो गया, 69 हो गया, मतलब 3 रुपया और टूट गया, तो और बेनिफिट हो गया मेरा, क्योंकि अब मुझे पेमेंट 69 के हिसाब से करना है उस 1 लाख का, तो 3 लाख का बेनिफिट हुआ। अगले महीने फिर हेजिंग ली तो 69,000 लगे, 69,000 में 3 लाख रुपए में से निकल गए, तो 2,31,000 रुपया मेरे घर में और आ गया। इसका मीनिंग ये हो रहा है कि ये हेजिंग के पैसे मुझे लग रहे हैं और डॉलर टूट रहा है, उसका बेनिफिट हो रहा है। अब मजेदार जो पॉइंट है वो ये पॉइंट है जो समझने जैसा है। अगले महीने में भाव 69 का 71 हुआ है, ये 3 महीने का था। आपने डॉलर अक्टूबर में आपने इंपोर्ट किए थे, जनवरी में पेमेंट करना था, महीने की महीने हेजिंग ली, जिस महीने भाव टूटा आपको बेनिफिट हो गया, अगले महीने में भाव टूटा आपको बेनिफिट हो गया। अब आपने यहाँ पे 69 के लेवल पे आपने कॉल ऑप्शन खरीद लिया, इसका मतलब 69 से भाव ऊपर गया तो सारा का सारा डिफरेंस आपको वापस मिल जाएगा, और बाजार हो गया 69 वाला 71, तो 2 लाख रुपया यहाँ पे आपकी कॉस्ट बढ़ी। जो आपने सोच रखी थी कि मुझे तो 69 ही पे करने को आने वाला है, ये 2 लाख रुपया आपको इस हेजिंग से वापस मिलेगा, तो आपको एडिशनल कोई कॉस्ट नहीं लगी, और अभी तक का जितना 69 के लेवल तक का आपका बेनिफिट था वो पूरा आपको मिल गया, तो आपको ओवरऑल 2,85,000 का बेनिफिट मिल गया। लॉजिकली 74 का डॉलर 71 हुआ, तो 3 लाख का बेनिफिट मिलना चाहिए था, क्योंकि आप नॉर्मल इंपोर्ट करते तो 3 लाख का बेनिफिट मिलता अगर हेजिंग नहीं लेते, पर उसमें आपको रिस्क ये रहता कि डॉलर अगर बढ़ जाता तो जितना बढ़ता वो लॉस होता। यहां पर आपने मंथली हेजिंग किया और हेजिंग की कॉस्ट निकालने के बावजूद भी आप 2,85,000 के प्रॉफिट में हो, और ऊपर से आपको ये गारंटी भी मिल गई कि बाजार यदि बढ़ेगा तो अब आपको कोई रिस्क नहीं आने वाला है, तो आपने अपनी रिस्क को भी कम कर लिया और रिटर्न्स को भी ऑलमोस्ट मेंटेन करके रख लिया। ये इसकी खास क्वालिटी है। तो हुआ ये कि मिडल के अंदर में भी भाव टूटा तो आपका बेनिफिट, भाव टूटा तो आपका बेनिफिट, भाव बढ़ा मेरा लॉस नहीं है, और उसके बदले में ये प्रीमियम मैंने चुकाए। अब ऐसा का ऐसा एक्सपोर्टर के लिए समझते हैं। एक व्यक्ति है जिसने 68 का जब भाव था तब $1,00,000 का माल एक्सपोर्ट किया, तो उसका सपना था मुझे 68 लाख मिलने चाहिए। 3 महीने बाद में रियल में 68 का ही भाव था, 68 का ही, तो लॉजिकली उसको 68 लाख ही मिलना चाहिए। तो अगर आज उसने कुछ नहीं किया होता तो उसको 68 की जगह 68 मिल जाते, लेकिन उसको हमेशा रिस्क रहती कि कल को यदि डॉलर का भाव बढ़ जाए तो उसको गेन हो सकता है, और भाव घट जाए तो उसको लॉस हो सकता है। लेकिन अब की सिचुएशन में क्या हुआ, डॉलर का भाव बीच में 68 का 70 हुआ, 68 का भाव 70 हुआ, तो जो प्रीमियम के 35,000 उसने चुकाए थे वो उसके नुकसान हो गए, पर अब उसका डॉलर 70 पे लॉक हो गया है कि 70 लाख तो उसको मिलने वाले ही है। अगले महीने में वापस 70 का 71 हो गया, प्रीमियम के नाम पे जो एक महीने के 35,000 चुकाए वो नुकसान हो गए, पर अब उसको ये क्लियर हो गया कि अब मुझे 71 तो मिलेंगे ही। अगले महीने में वापस 35,500 चुकाए और बाजार 71 का 68 आ गया, तो इंटरनल फ्लक्चुएशन हुआ है, ये 71 गया और 68 आया, पर जितना नीचे गया 3 लाख वो पूरा का पूरा पैसा इनको वापस मिल गया। तो मीनिंग ये हुआ कि बाजार 68 का 68 है, पर आपने ये 3 महीने का प्रीमियम चुकाने के बावजूद भी 3 लाख रुपया वापस वसूल किया और 1,95,000 के आप प्रॉफिट में रह गए। मुद्दा फिर से बेसिक पे आना, बहुत ज्यादा फिगर्स में कंफ्यूज मत होना। मेरा इस पूरे के पूरे एग्जांपल से एक सिंपल पॉइंट जो अच्छे से समझाना है आपको वो ये है कि हर महीने की महीने में प्रीमियम चुकाता हूं और उस महीने की ये गारंटी ले लेता हूं कि ये महीने में यदि भाव बढ़ गया, मैं अगर एक्सपोर्टर हूं, यदि भाव बढ़ गया तो प्रॉफिट मेरा, और यदि भाव घट गया तो खाली प्रीमियम जाएगा। भाव घट गया, भाव बढ़ा तो प्रॉफिट पूरा आपका इंटेक्ट हो गया, ये प्रीमियम का पैसा लगा। भाव फिर बढ़ गया, प्रॉफिट पूरा इंटेक्ट हो गया, प्रीमियम का पैसा लगा, और प्रॉफिट इंटेक्ट हुआ वो यहाँ प्रूव हुआ जब भाव 71 का 68 हुआ तो पूरे 3 लाख रुपए आपको वापस मिल गए और यू मेड मनी।
तो क्या क्या हेजिंग के अपने ऑप्शंस के बेनिफिट देखें। हमारा पूरा का पूरा फोकस हमारे कोर बिजनेस पे रहता है, हमको कोई भी तरह का स्ट्रेस नहीं होता है करेंसी फ्लक्चुएशन का। लो कॉस्ट सॉल्यूशन है ये। दिखने के अंदर में लगता है महीने का आधा टका कॉस्ट लग रही है एक्सपोर्टर को, लेकिन वो आधा टका कॉस्ट उस व्यक्ति को लग रही है। महेश भैया, महेश रामानी का क्वेश्चन है कि ये कॉस्ट वाला पूरा फिर से बताइए। मैं लास्ट में आपको क्वेश्चन आंसर वाला जब टाइम दूंगा उस समय में मैं एक बार इसको फिर से चला दूंगा, है ना। एक बार पहले पूरा प्रेजेंटेशन घुमाते हैं, ये चीजें बार बार रिपीट होने वाली है अभी, तो आपको आ जाएगा इसमें समझ में। और उसके बावजूद नहीं आए तो लास्ट में आई विल एक्सप्लेन यू महेश भैया। ओके, तो हमारा यहाँ पर क्या है, स्ट्रेस जो है करेंसी फ्लक्चुएशन का वो हमको नहीं रहता है। सॉल्यूशन एकदम लो कॉस्ट है। लो कॉस्ट इसलिए है कि दिखने में आधा टका कॉस्ट लगती है महीने की, पर वो महीने का आधा टके में हमको एक गारंटी और मिलती है कि इंटरनल फ्लक्चुएशन का बेनिफिट भी हमारा है। तो नेट ऑफ करते हैं तो पता चलता है लास्ट में कोई लंबी चौड़ी रिस्क नहीं रहेगी, कोई भी तरह का M2M रिस्क नहीं है आपका। इसका मतलब यदि मार्केट आपके अगेंस्ट में जाए, नॉर्मली एक्सपोर्टर होता है तो वो फ्यूचर्स को साथ में शॉर्ट कर चुका होता है। अब यदि डॉलर बढ़ रहा होता है तो दिखने में तो उसको वर्चुअल में तो गेन आएगा, क्योंकि जब डॉलर आएंगे तो बड़े ऊपर में बिकेंगे, लेकिन यहाँ पे M2M का लॉस आ रहा होता है उसको, तो वो M2M का लॉस भरने में आदमी थक जाता है। लेकिन ऑप्शन के थ्रू आप हेजिंग करते हो तो आपको कोई भी तरह का एडिशनल पेमेंट करना ही नहीं है, खाली बस वो प्रीमियम चुकाया, मुद्दा खत्म। प्रीमियम के अलावा 1 रुपया भी देना नहीं है। अब तो खाली लेने की बात ही आएगी प्रीमियम चुकाने के बाद। जैसे मैंने अगर कोई गाड़ी का इंश्योरेंस लिया है तो इंश्योरेंस का पैसा दे दिया, अब मुझे और एडिशनल इंश्योरेंस कंपनी को कुछ देने को आने वाला नहीं है। अब तो मुझे लेने को आ सकता है, कल को यदि गाड़ी को एक्सीडेंट हुआ तो पैसा लेने को आएगा, देने को कुछ नहीं आने वाला है। नो मल्टीपल अकाउंटिंग एंट्रीज, अकाउंटिंग एकदम सिंपल। पूरे महीने की एक ही एंट्री है, एक बाई और एक सेल। इंश्योरेंस बाई किया इतने में, वापस क्लिक सेटल हुआ इतने में, और वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। देसी गणित पे पूरा का पूरा समझने जैसा है। हम लोग क्यों रेकमेंड करते हैं लोगों को ऑप्शन, इसीलिए कि लो कॉस्ट सॉल्यूशन है, क्लाइंट की रिस्क लिमिटेड हो जाती है, उसको पता होता है मेरा जाना कितना है इसमें, इस हेजिंग के चक्कर में, लेकिन आने का कोई सीमा नहीं है, कितना भी आ सकता है। लाइव प्राइस एक्सेस है। देखो ये कोरोना के कारण डॉलर में थोड़ा फ्लक्चुएशन हुआ है, स्टॉक मार्केट में ज्यादा फ्लक्चुएशन हुआ है, पर कोई दूसरी चीज हो सकती है, वो कोरोना नहीं कोई और नाम की होगी, उसमें स्टॉक मार्केट को कम फ्लक्चुएशन होगा, डॉलर को ज्यादा हो जाएगा। तो कल को अगर इतना बड़ा जाइंट मूवमेंट यदि डॉलर में आ जाए तो लोगों के अच्छे अच्छे बिजनेस अनवायबल हो जाएंगे। तो हमारा एकदम क्लियर कहना है कि गाड़ी का इंश्योरेंस एक बार नहीं भी लो ना तो चलेगा, क्योंकि एक्सीडेंट होने के ऊपर में अपने कंट्रोल ज्यादा है, लेकिन मार्केट जो मार्केटेबल चीजें हैं उनका इंश्योरेंस होना जरूरी है, क्योंकि वहां पे एक्सीडेंट कितने भी बड़े हो सकते हैं, कितना भी बड़ा डिजास्टर हो सकता है, तो वहां पे हेजिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। पूरा का पूरा लाइव प्राइस आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, तो आप एक्चुअल प्राइस के ऊपर में जहां सारा इंडिया ट्रेड कर रहा है उसी पे आप ट्रेड कर रहे होते हो, सारा का सारा। इसलिए कि लाइव प्राइस एक्सेस है, इसलिए ट्रांसपेरेंट है, और फोरकास्टिंग आपके लिए इजी हो गई कि अब आपको कुछ फोरकास्ट करना ही नहीं है। अब है ना, ये ग्राफिकल वे के अंदर में इस चीज को समझाने की कोशिश की है। एक व्यक्ति बोलता है भैया मैं कोई हेजिंग वेजिंग करता नहीं हूँ, मैं तो जिस दिन डॉलर हाथ में आते हैं उस दिन बेच देता हूँ, और जिस दिन सौदा मारना था उस दिन सौदा मार देता हूँ। तो कोई व्यक्ति खाली बिना हेजिंग के काम करता है वर्सेस जो हेजिंग के काम करता है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये जो ब्लू कलर की लाइन है जिसने हेजिंग नहीं की उसका है, जो बोलता है मैं तो बस जब डॉलर हाथ में आते तब बेच देता हूँ। और दूसरी जो रेड कलर की लाइन है वो जिसने हेजिंग की है उसका है। ये जो मिडल लाइन है ये है जीरो, मतलब ये ऊपर में जाता है तो प्रॉफिट होता है, नीचे जाता है तो नुकसान होता है। तो आप देखोगे ना, अगर ऊपर जाता है तो जिसने हेजिंग नहीं किया उसको प्रॉफिट ज्यादा होता है, क्योंकि उसको प्रीमियम नहीं चुका है, और जिसने प्रीमियम चुका है उसका प्रॉफिट कम है। तो लाल लाइन प्रॉफिट के टाइम पे कम प्रॉफिट करती है, लेकिन साथ साथ में लाल लाइन लॉस वाले टाइम पे एक खाली प्रीमियम जितना ही लॉस करती है। तो आप देखोगे तो लाल लाइन के लॉस कभी भी ज्यादा बड़े नहीं है, जबकि प्रॉफिट वाले टाइम पे ऊपर के प्रॉफिट से थोड़ा ही कम प्रॉफिट होता है, लेकिन प्रॉफिट होता उसका बड़ा ही है। तो ये दोनों सिचुएशन के कारण जब लॉन्ग रन में टोटल मारते हैं ना, तो मीनिंग ये होता है आप अगर 900 रुपए कमा रहे हो बिना हेज किए तो हम 97 कमाएंगे, लेकिन आप अगर 50 का नुकसान कर रहे हो तो हम 3 रुपए का ही नुकसान करेंगे।
तो जब हम नुकसान में 3 रुपए का लॉस करते हैं और सामने वाला 50 का नुकसान करता है, और जब वो कमाता है तो 100 का कमाता है, तो हम भी 97 कमा लेते हैं, तो देर सवेर जब टोटल मारते हैं तो पता चलता है कि हमने उसको एक्सीड कर दिया। तो हिस्टोरिकल जो डेटा के ऊपर का जो रिजल्ट है ना, ये एक्चुअल हिस्टोरिकल डेटा का रिजल्ट है। जिसने हेजिंग नहीं की उसने एक एक महीने में 17% जितनी रिस्क देखी है, तो जिसने हेजिंग की उसने 6% से ज्यादा रिस्क कभी भी नहीं देखी। जिसने हेजिंग नहीं किया उसने मैक्सिमम रिटर्न 7.5% का देखा। उसकी कंपैरिजन में ऑप्शन के थ्रू हेजिंग करने वाले भी 5.5% का रिटर्न तो उसने भी लिया है। तो प्रॉफिट आया तो हमको शायद थोड़ा कम प्रॉफिट हुआ, पर लॉस में हमने लॉस बहुत कम कर दिया। और यही रीजन है कि ओवरऑल अपन लोग 1% उससे ज्यादा आउट परफॉर्म कर गए। तो ऐसे देखने में तो आप ये कह सकते हो कि यार 1% ही तो आउट परफॉर्म किया, तो क्या खास बात है। पर खास बात ये है कि 1% तो हमको सामने से मिल गया और ऊपर से हम हेज भी हो गए। इसका मतलब हमारी रिस्क भी नहीं रही और प्रीमियम भी नहीं लगा, सामने से कुछ कमाया ही है हमने। तो बहुत अच्छे से समझने जैसा मुद्दा है। मतलब दो चीजें ऑप्शन दिया जाए, एक ऑप्शन ये देता हूं कि बाजार यदि बढ़ा तो गेन आपका, बाजार यदि घटा तो नुकसान आपका। और दूसरा ऑप्शन ये देता हूं कि बाजार यदि बढ़ा तो गेन आपका, बाजार यदि घटा तो नुकसान आपका नहीं, और दोनों की कॉस्ट सेम मांग रहा हूं आपसे। तो ऑटोमेटिकली दूसरा वाला ऑप्शन फायदेमंद हो गया। तो ये पुराना डेटा प्रूव कर रहा है। दूसरा व्यक्ति वो बोलता है कि मैंने फ्यूचर के थ्रू हेजिंग करता हूं जी, मैं तो ऑप्शन के थ्रू नहीं करता। तो फ्यूचर के थ्रू हेजिंग करते हो तो भी आप ये चेक करोगे तो जब गेन होता है तो दोनों को ऑलमोस्ट सिमिलर ही गेन हो रहे हैं। लेकिन अगेन वही लॉस होता है तो फ्यूचर में लॉस भी अनलिमिटेड होता है, जितना आपके रिवर्स में गया उतना लॉस भी होता रहता है। पर यहाँ पे आपका लॉस लिमिटेड होने के कारण आप जब लॉन्ग रन में देखते हो तो इसको भी आप आउट परफॉर्म ही करते हो। 16% जब फ्यूचर ने कमाया तो आपने भी 15-15.5% कमा लिया। 8% जब फ्यूचर ने लॉस किया आपने 5-5.5% का लॉस किया। ओवरऑल आपने आउट परफॉर्म किया। ऐसे ही कोई एक्सपोर्ट वाला है तो एक्सपोर्ट के अंदर में भी सेम वही ग्राफ है, लॉस लिमिटेड है, गेन के अंदर में ऑलमोस्ट सिमिलर गेन है और आउट परफॉर्म करते हो। और जो फ्यूचर्स के थ्रू करता है वो भी सेम प्रोफाइल है। इतने बड़े बड़े डिजास्टर हो सकते हैं, इतना बड़ा लॉस हुआ है जिसने फ्यूचर से उसको मैनेज किया था, क्योंकि मार्केट रियल में उसके फेवर में गया हुआ होगा, पर फ्यूचर की पोजीशन बनाने के कारण फ्यूचर में उतना लॉस हो गया। लेकिन वही ऑप्शन से हेजिंग की होती तो खाली इतने लॉस में उसका काम हो गया होता, और गेन में तो वापस वो गेन तो ये भी कर ही रहा है। तो ओवरऑल जब अपन देखते हैं तो आउट परफॉर्म करता है। इसका मतलब चाहे इंपोर्टर हो या एक्सपोर्टर हो, चाहे वो हेज कर रहा है या फ्यूचर से, मतलब फ्यूचर से हेज कर रहा है या अनहेज कर रहा है, अगर कंपेयर किया जाए तो चारों इवेंट में लॉन्ग रन में ऑप्शन जो है वो एक्सीड कर देता है। इसका रियल डेटा हमारे पास अवेलेबल है, आप मांगेंगे तो बता सकेंगे। एक दो मैं रियल कस्टमर की कुछ केस स्टडी दिखा रहा हूँ आपको, एकदम सिंपल क्विकली। ये किसी कस्टमर की केस स्टडी है। हाँ, मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है या नहीं दिख रही है एवरीवन? एक मैसेज आया है मेरे पास में कि स्क्रीन इज नॉट विजिबल। आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी? एक टेबल है स्क्रीन के ऊपर। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स, थैंक्स। तो यहाँ पे एक कस्टमर है, डायमंड के एक्सपोर्टर हैं, उन्होंने उनका इतना रिसीवेबल था लगभग 41 करोड़ का, 44 करोड़ का उनका स्टॉक पड़ा था। तो ओवरऑल उनका 85 करोड़ का टोटल रिसीवेबल था, जिसका उनको पेमेंट और पेएबल के अंदर में वापस उनके कुछ पेमेंट लायबिलिटीज थी 45 करोड़ की, और बैंक फैसिलिटीज थी 14 करोड़ की। तो 59 करोड़ उनको चुकाने को आ रहा था डॉलर में। तो नेट उनका 26 करोड़ का नेट एक्सपोजर उनका रिसीवेबल अवेलेबल था, जो उनको भविष्य में मिलना था। तो इसका मीनिंग ये है कि कल को यदि डॉलर का भाव टूट जाए तो उनको रिस्क खड़ा होने वाला था। तो रिस्क खड़ा होने वाला था तो वो फ्यूचर्स का भाव उस समय 65.12 चल रहा था। वो फ्यूचर से भी इसको एजिंग कर सकते थे, और यदि ऑप्शन से करते तो 65 का पुट ऑप्शन बाई करके 25 पैसे में, उस समय ये प्राइस चल रहा था, उन्होंने यदि किया होता तो उनको क्या कॉस्ट लगी होती, और अगर फ्यूचर से किया होता तो क्या कॉस्ट लगी होती। तो उसका एक इवेल्युएशन है जिसका ये नेट टेबल है। उस एक्सपोर्टर की लाइफ के अंदर में डॉलर एक साल में 65 वाला 71 हो गया। तो सचमुच में 65 का 71 हो गया तो उनको गेन हो जाना चाहिए था, क्योंकि एक्सपोर्ट किया हुआ है। पर जो हेजिंग है, हेजिंग में कॉस्ट लगी। तो अब उन्होंने यदि फ्यूचर से हेजिंग की है तो उनको
3.07 करोड़ की कॉस्ट आई। तो लगभग 3 करोड़ रुपया उनको फ्यूचर की हेजिंग कॉस्ट लगी। और उसी की कंपैरिजन में यदि उन्होंने ऑप्शंस के थ्रू हेजिंग की तो यही 3 करोड़ की जगह पे उनको 38 लाख की कॉस्ट में पूरा काम हो गया। हेलो, यही 3 करोड़ की जगह पे उनको 38 लाख रुपए के अंदर में उनकी पूरी हेजिंग हो गई। तो फ्रेंड्स, मीनिंग क्या हुआ कि ऑलमोस्ट 25, 30, 35, 40 करोड़ का एक्सपोजर पूरे साल हैंडल करने की कॉस्ट उन्होंने लगभग 38 लाख रुपया चुकाई। गिनने जाओ तो लगभग 8% जैसी कॉस्ट हुई है। उनका नेट ए माइनस बी नेट रिसीवेबल था 26 करोड़, 41 करोड़, 39 करोड़, 36 करोड़, 41, 38, 36, 28। ये रियल एग्जांपल है किसी क्लाइंट का। तो ऑलमोस्ट 30, 35, 40 करोड़ का एक्सपोजर है जो साल भर का चला। और वो 35, 40 करोड़ के एक्सपोजर को यदि ऑप्शन के थ्रू मैनेज किया तो उनकी जो कॉस्टिंग आई वो 38 लाख रुपए की आई। और वही यदि फ्यूचर से मैनेज करते तो 3 करोड़ चुका चुके होते। दूसरे किसी कस्टमर का एक इसी तरीके का ही कि रियल केस स्टडी है, सेम वही तरीके से एग्जांपल दिया हुआ है। रिसीवेबल 60 करोड़ के थे, स्टॉक 80 करोड़ का था, 140 करोड़ का नेट रिसीवेबल था, इतना पेएबल था, तो लगभग 75 करोड़ का एक्सपोजर खड़ा था। ये ऑन एन एवरेज उनका ये एक्सपोजर चल रहा है। और डॉलर का जो प्राइस है वो 66 से लेके यहाँ तक 68.88 तक पहुंचा। तो ओवरऑल क्या सिनेरियो हुआ, ओवरऑल ये 64, 65 वाला डॉलर 68 तक पहुंचा। तो सचमुच में उनको, जिसने हेजिंग नहीं की कुछ भी, तो उनको लॉजिकली 5 करोड़ का बेनिफिट होना चाहिए था। पर जिसने हेजिंग की तो हेजिंग करने के बावजूद उनको 7 करोड़ का बेनिफिट हुआ। क्यों बेनिफिट हुआ? क्योंकि बीच का फ्लक्चुएशन भी उनको गेन मिलता है। भाव यदि बीच के अंदर में बढ़ते हैं और घटते हैं, यहां पर डॉलर 68 का 70 हुआ तो अब आपका 70 पे लॉक हो गया, मतलब 70 रुपए तो आपको मिलने ही है। 70 का 72.70 हो गया, अब आपको 72.70 मिलना है। उसका 73.40 हो गया, अब आपको 73.40 मिलना है। अब 73.40 का 70 हुआ तो आपको लॉस नहीं हुआ, पूरा का पूरा डिफरेंस आपको मिल गया। तो मीनिंग हुआ इंटरनल फ्लक्चुएशन का भी उनको गेन हुआ। और ये इंटरनल फ्लक्चुएशन का गेन होने के कारण 5 करोड़ का गेन उनको 7 करोड़ हो गया। ये वो व्यक्ति है जो बोलता है मैंने हेज नहीं करता। पिछला वाला केस स्टडी था वो उस व्यक्ति का था जो बोलता है मैं फ्यूचर से हेज करता हूँ। फ्यूचर से हेज करने वाले का काम 3 करोड़ की जगह 38 लाख में हो गया। जो हेज नहीं करता उसको 5 करोड़ का गेन आना चाहिए था, उसकी जगह 7 करोड़ का गेन आ गया, क्योंकि इंटरनल फ्लक्चुएशन ने उसको कमा के दे दिया। अच्छा, ये एक बाइफर्केशन और देखने जैसा जो अच्छा बाइफर्केशन है। मैक्स बेनिफिट बीच में जब भी अनहेज्ड वाले को जो हुआ वो 3 करोड़ का, 3.20 करोड़ का हुआ। उसकी जगह पे जिसने हेजिंग किया, जिसने इंश्योरेंस लिया, उसको 3 करोड़ का हुआ। उसको 20 लाख का खर्चा आया था प्रीमियम का, तो 3.20 करोड़ की जगह 3 करोड़ तो उसको भी बेनिफिट हुआ ही है। पर मैक्स लॉस में जब 3 करोड़ का लॉस किया उसने अनएज में, तब आपका लॉस 1.2 करोड़ से ज्यादा कभी भी नहीं हुआ। तो आपने लॉस को लिमिट में रखा और प्रॉफिट को सस्टेन रख लिया। तो अदर बेनिफिट है कि एडिशनल कोई दूसरी हेजिंग कॉस्ट फंड बढ़ने का जरूरत नहीं है। फेवरेबल मार्केट का बेनिफिट पूरा आपका है। और फिक्स कैश फ्लो होने के कारण आप पूरे साल का प्लान तुरंत बना सकते हो शुरुआत में ही। आपको कभी भी पूछने की जरूरत नहीं होगी कि बीच में मुझे अचानक कुछ ज्यादा देने को आएगा क्या। आपको बीच में अचानक कुछ ज्यादा देने को नहीं आने वाला है। और ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी एकदम लोएस्ट होती है, तो आप कम ट्रांजेक्शन कॉस्ट में पूरा काम कर सकते हो। नॉर्मली क्लाइंट का ये क्वेश्चन था, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था हेजिंग कितनी कॉस्ट लगती है। तो हमने एक इंडिकेटिव कॉस्ट दी है कि यदि आप एक्सपोर्टर हो तो आपको साल का 3% के आसपास, 3 से 6% की रेंज में अपनी कॉस्ट मानने का। सचमुच में 1-1% सामने से रिसीव हो गया, कॉस्ट लगी नहीं, ऐसे एग्जाम्पल बहुत पड़े हैं। पर कंजर्वेटिव साइड पे आपको ये बता रहा हूं कि आप 3 से 6% की कॉस्ट मानो। इसको कॉस्ट बढ़ने के बाद अब बेनिफिट पूरा आपका है, कॉस्ट ये आपकी मैक्सिमम हो गई। सो अभी क्या रहा, तो मेजोरिटी जो इंडियन कॉर्पोरेट्स हैं उनकी अनहेज्ड पोजीशन जो रखते हैं वो लोग, तो उसके कारण क्या है कि भाई उनको कई बार फॉरवर्ड के कारण से नुकसान हुए हैं, इसलिए वो बोलते हैं यार हमको घबराहट होती है, हम जब भी फॉरवर्ड में करते हैं ना तो हमको लॉस ही हुआ है।
और उस कारण से वो ये चाहते होते हैं कि नहीं, हमको ये कुछ नए एक्सपेरिमेंट नहीं करने। पर मैं आपको एकदम स्ट्रिक्टली ये एडवाइस करूंगा कि इसको एक्सपेरिमेंट बेसिस के ऊपर में तो ट्राई करना 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 जरूर करना। इसमें जाने की लिमिट क्लियर है। आप 10,000 रुपए का खर्चा करके 1,00,000 रुपए का खर्चा करके भी ट्राई करके देख सकते हो। तो पुराना कोई एक एक्सपीरियंस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में अच्छा नहीं रहा हेजिंग का, दैट डजंट मीन कि हेजिंग अच्छा नहीं है क्या। कितनी बार ऐसा होता है कि हम यूरोप घूमने जाते हैं पर उस समय पे कोई सिचुएशन अच्छी नहीं हुई, तो दैट डजंट मीन कि अपन ये कहें कि यूरोप घूमने लायक जगह नहीं है क्या। हमारा एक्सपेरिमेंट, हमारा जो सोचना था, हमने जो बुकिंग की थी वो तरीके से नहीं की थी। तो अपने को वापस समझना है कि अपने को कोई नया एक्सपेरिमेंट करने के लिए रेडी रहना चाहिए। कॉस्ट ऑफ एजिंग बहुत कंट्रोल में नहीं हुई उनकी पहले, तो उनको घबराहट है कि नहीं मुझे नहीं करना। पर अब आपको पता करना होगा कि आपकी एजिंग कॉस्ट बहुत कंट्रोल में की जा सकती है, पहले से फिक्स की जा सकती है। और आप लोगों को, अधिकतर सब लोगों को ये लगता होता है कि रूपी जो है वो नॉर्मली इतना फ्लक्चुएट होता ही नहीं है। तो ये सारे के सारे मिथ तो अभी मेरे ख्याल से पिछले 5-6 महीने में लोगों के टूट गए और उनको अपने आप समझ में आ गया कि मूवमेंट कुछ भी हो सकता है, किसी भी साइड का हो सकता है। इसी के साथ में एक और, ये स्पेशली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए ये स्लाइड की कोई प्रोजेक्ट वगैरह को फाइनेंस करवा रहे हो तो सेम ये काम प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल कोई मशीनें लेके आ रहे हैं, क्लाइंट को मशीनें दिलवा रहे हैं, तो उनको पास में धीमे धीमे पेमेंट आता है। तो धीमे धीमे पेमेंट आता है तो डॉलर का पेमेंट वो धीरे धीरे कर रहे होते हैं। तो हेजिंग उन प्रोजेक्ट के अंदर में भी की जा सकती है। जितना आपका डॉलर का एक्सपोजर कम होता जाता है उतना सौदा आप यहाँ काट सकते हो। इसका मीनिंग समझना बहुत अच्छे से समझने जैसा है, सभी व्यक्तियों के लिए ही, जेम ज्वेलरी वालों के लिए भी काम का है। फॉर एग्जाम्पल आपका अभी $10 लाख का एक्सपोर्ट खड़ा था, $10 लाख में से $2.5 लाख का पेमेंट आ गया तो आप 2.5 लाख जितना कट कर दोगे। फिर नया ये $1.25 लाख का बुक हुआ, फिर से बढ़ा दो। फिर $5 लाख का पेमेंट हो गया, फिर से कम कर दो। तो द सेम वे आपका जितना एक्सपोजर बढ़ता है घटता है, उस तरीके से आप हजार डॉलर के लॉट की साइज में आप कोई सा भी डॉलर, कितना भी डॉलर को हेज कर सकते हो। तो डॉलर का लॉट साइज 1000 का ही है केवल। तो बस हजार डॉलर की राउंडिंग में आप अपना हेजिंग कर लो। तो जो मिलियंस बिलियंस के अंदर में उनको तो कोई पॉइंट ही नहीं है। जिनका बहुत छोटा एक्सपोजर है वो भी हजार डॉलर के उसमें इसको एक कंट्रोल में कर सकता होता है। तो इंडिकेटिव कॉस्ट ऑफ हेजिंग नॉर्मली कैसी है, तो लगभग 20 पैसा पर डॉलर की कॉस्ट आती है अगर लॉन्ग रन के अंदर में अपन एवरेजिंग करते रहते हैं। तो क्लाइंट के लिए क्या हो गया है अब हेजिंग का बेनिफिट, क्लाइंट के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट हो गया है कि अब अनवाइबल जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो कभी भी आपके लिए अनवाइबल प्रोजेक्ट जैसा शब्द आएगा ही नहीं आपकी डिक्शनरी में। और इसको आपको कैसे एज्यूम करना है, आपको ऐसा एज्यूम कर लेना कि जैसे अपन शिपिंग इंश्योरेंस देते हैं ना, अपने माल को भेजते हैं तब, तो वो जो इंश्योरेंस पे करते हैं बस उसी तरीके से हेजिंग कॉस्ट पे कर देने का। पर ये पे करते ही अब आप एकदम रिलैक्स हो गए और बिजनेस हमारे लिए हमेशा के लिए प्रूडेंट हो गया। हमको कभी भी बिजनेस में अब कोई रिस्क नहीं रही। तो क्या क्या है प्रोजेक्ट, मतलब हमारे लिए कि भाई एडवांटेज टू एडवाइजर फॉर प्रोजेक्ट, तो जो भी इसके लिए एडवाइजर बनते हैं उनके लिए भी ये बेनिफिट है कि क्लाइंट, आपके क्लाइंट को ट्रस्ट बढ़ता है आपके ऊपर में। तो जो लोग यहाँ पर एडवाइजर है या फिर जो लोग अपने कंसल्ट कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को, या कई लोग हों शायद जो उसमें अकाउंटेंट या उस कैटेगरी में भी हो जिनका काम है कि अपने अपने जो बिजनेस, जो उनकी कंपनी है उसकी पूरी की पूरी हेजिंग रखनी है। तो यदि आप ऐसे सॉल्यूशन अपने ओनर को देते हैं, अपने डायरेक्टर्स को देते हैं, तो वो ट्रस्ट वर्दी सिचुएशन खड़ी हो जाती है और ज्यादा आप रिलैक्स वे में आ जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन था कि कैसे हम लोग बहुत कम प्रीमियम चुका करके पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से करेंसी नाम की रिस्क को खत्म कर सकते हैं। और मजेदार पॉइंट ये है कि भविष्य में ये भी सरप्राइजिंगली पता चल सकता है कि हमने कॉस्ट भरना तो दूर की बात है, हेजिंग से भी पैसा ले लिया और टेंशन से भी मुक्ति ले ली। तो ये पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन था। अब आप लोग अपने क्वेश्चंस मुझे पूछ सकते हैं, जो जो भी आपको क्वेरीज हैं वो आप मुझे पूछिए, एंड आई वुड बी हैप्पी टू गिव यू द रिप्लाई ऑफ द सेम। थैंक यू गोविंद जी, वो काफी डिटेल में आपने समझाया हेजिंग का प्रोसेस और फ्यूचर एंड ऑप्शंस में क्या डिफरेंस है, प्रीमियम पे करके कैसे उसका हम बेनिफिट ले सकते हैं एंड सिक्योर आवर रिस्क फैक्टर्स। सो नाउ आई इनवाइट मेंबर्स, किसी ने पूछा है व्हाट्स द मैक्सिमम प्रीमियम पर डॉलर? यस,
तो क्वेश्चन धनाधन आ रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है ये वाले क्वेश्चन ही मुझे पूछना, डिफिकल्ट वाले मत पूछना। चलो, तो पहला है जिग्नेश भाई का एक क्वेश्चन है, इज इट अवेलेबल टू बाई ऑनलाइन? यस, इट इज अवेलेबल टू बाई ऑनलाइन ऑल्सो। मतलब ये एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जैसे है, तो वहां पर डॉलर जैसे अपने को स्टॉक के प्राइस मिलते हैं, वैसे ही डॉलर के ऑप्शंस के प्राइसेस भी मिलते हैं करेंसी सेगमेंट में। तो वहां से आप ऑनलाइन खुद बाई करना चाहो तो वैसे भी ये सारा का सारा काम कस्टमर के खुद के अकाउंट में ही हो सकता है, उनको अपने अकाउंट में ही करना चाहिए, उससे टैक्स बेनिफिट भी मिलता है कि कल को डॉलर में कॉस्ट लगी तो यहाँ हेजिंग सामने एक आपस में सेट ऑफ हो जाएगा। तो हेजिंग पूरी की पूरी आपके अकाउंट में ही होती है और ऑनलाइन की जा सकती है। एक दो ऊपर क्वेश्चन गए हैं। अच्छा, तो मैम आप मुझे बता सकेंगी क्या? हाँ, श्योर प्लीज। व्हाट इज द मैक्सिमम प्रीमियम पर डॉलर? ओके, सो मैक्सिमम प्रीमियम पर डॉलर वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपने डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन पूछा है। वैसे दैट इज एक्चुअली डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ रिस्क इज देयर इन मार्केट। समझना, कल को यदि वॉर लाइक सिचुएशन हो जाए तो ये प्रीमियम जो है वो 4-4, 5-5% भी महीने के हो सकते हैं, क्योंकि उस समय पता नहीं होता डॉलर कहाँ जाए। 70 का डॉलर ऐसा सिचुएशन हो जाए कल को कोई कारण से कि ये 70 का तुरंत ही 80-90 हो सकता है या तुरंत ही 60 हो सकता है, तो प्रीमियम बढ़ जाएंगे। पर ऑन एन एवरेज का मैं आंसर दे रहा हूं, ऑन एन एवरेज मंथली जो कॉस्ट होती है ना, वो एक्सपोर्ट के लिए 0.5% और इंपोर्ट के लिए 1% पर मंथ की कॉस्ट है। अब ये कॉस्ट ज्यादा मत समझना इसको, क्योंकि इस कॉस्ट के साथ में एक पैकेज मिल रहा है जो बेनिफिट का पैकेज है। वो ये है कि मंथ ऑन मंथ बेसिस का भी जो फ्लक्चुएशन है वो आपका हो गया। मतलब महीने के अंदर में अगर मार्केट फेवर में गया तो गेन आपका, अनफेवर में गया तो लॉस वापस मिल गया। फिर अगले महीने गेन में गया तो फेवर में आ गया तो गेन आपका, लॉस में गया तो आपको क्लेम मिल गया। इसी कारण से जब मैंने फ्यूचर के साथ कंपेयर करके दिखाया कि आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करते हो, उससे आप ओवरऑल गेन करते हो पेमेंट ज्यादा करके भी। पर ये पेमेंट करने से आपको 3-4 बेनिफिट मिल गए कि अब M2M का चक्कर नहीं, कोई एडिशनल पेमेंट नहीं, कोई एडिशनल रिस्क नहीं, फेवर पूरा आपका। तो 0.5% एक्सपोर्टर की कॉस्ट है, 1% इंपोर्टर की कॉस्ट है। ये मैं ऑन एन एवरेज हायर साइड का बता रहा हूँ। मैम अगला क्वेश्चन क्या था? इज इट फिजिबल फॉर शॉर्ट पीरियड लाइक विद इन मंथ? अच्छा, विद इन मंथ भी ऐसे पॉसिबल है कि विद इन मंथ वाला भी आप ले सकते हो, जिसको जैसी जरूरत होती है उतने प्रीमियम भर सकते हैं। तो प्रीमियम कम समय का अपन लेंगे। अच्छा, इसमें एक मजेदार पॉइंट है जो मुझे बताना रह गया है। मान लीजिए मैंने एक इंश्योरेंस लिया, मेडिक्लेम। तो मैंने मेडिक्लेम लिया तो 1 साल का मेडिक्लेम होता है। जनवरी में मैंने लिया तो दिसंबर तक वो अवेलेबल था। कोई कारण से फरवरी में मेरी डेथ हो गई तो इसका मतलब जो प्रीमियम मैंने भरा था वो गया। लेकिन यहां पर एक बेनिफिट ये है कि आपने मान लीजिए 1 महीने की हेजिंग ली, एक्सपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट किया था, 1 महीने की हेजिंग ली, लेकिन एक्सपोर्ट जिसको किया था ना वो इतना सद्दर आदमी की 7 दिन में पेमेंट भेज दिया। आप बड़े लकी रहे। तो 7 दिन में पेमेंट आ गया तो आपके पास डॉलर आ गए, तो आप इस हेजिंग को भी वापस कैंसिल कर सकते हो। मतलब वापस इसको स्क्वायर ऑफ कर दोगे तो उस केवल 7 दिन का ही प्रीमियम आपका लगा, बाकी का पैसा अपने को वापस मिल जाएगा। तो जिस व्यक्ति का ये क्वेश्चन था कि क्या शॉर्ट टर्म हेजिंग भी हो सकती है, तो यस हो सकती है। जितने टाइम यूज किया उतने का चार्ज लगा, बाकी का पैसा रिफंड हो जाता है, बाकी का पैसा वापस मिल जाता है। ओके, थैंक यू। अब मैं नॉर्मल क्वेश्चंस पे आ जाऊं, बाकी तो स्क्रीन पे मुझे दिख रहा है। और कोई पुराना क्वेश्चन बाकी है मैम? हाँ, एक है सेम टू इन गोल्ड। हरे कृष्ण सोनानी जी का क्वेश्चन है, सेम टू इन गोल्ड। सेम टू इन गोल्ड? हाँ, अच्छा। हाँ, तो गोल्ड के अंदर में सर ऑप्शन ज्यादा लिक्विड नहीं है एक्चुअली। आपका जो क्वेश्चन है मैं समझ गया हूँ, आपका यही क्वेश्चन है ना कि क्या गोल्ड के अंदर में भी सेम ये का यही फैशन आ सकता है क्या? तो अभी के टाइम पे इक्विटी मार्केट में ये फुल्ली अवेलेबल है, डॉलर में ये अवेलेबल है क्योंकि उनके ऑप्शंस लिक्विड हैं। गोल्ड के ऑप्शन ज्यादा लिक्विड नहीं है, तो आई हैव टू सर्च इट आउट। मैं अभी गोल्ड के अंदर में ज्यादा काम नहीं कर रहा हूँ, पर फॉरेक्स गोल्ड के जो ऑप्शंस हैं वहां पे काम होता है, पर वो हमें एक्सेस नहीं है ट्रेडिंग। और इंडियन गोल्ड अभी कितना लिक्विड हुआ है ऑप्शन, आई हैव टू चेक दैट। सर आप आ सकते हैं अभी नॉर्मल क्वेश्चन। अब आ जाऊं आगे। तो जिग्नेश भाई के क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया था। संजय भाई का था व्हाट मैक्सिमम प्रीमियम, ये मैंने दे दिया है। भाविन भाई थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट।
एंड एक है शैलेश भाई का, जिग्नेश भाई के इमीडिएटली बाद है व्हाट इज द लॉट साइज। हाँ मैंने आंसर दे दिया ना सर दे दिया, ओके ओके। हाँ व्हाट इज द मैक्सिमम प्रीमियम वाला क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं ना, बोल रही है ना मैम आप? नहीं, मिनिमम लॉट साइज वाला। मिनिमम हाँ लॉट मिनिमम साइज, लॉट साइज लॉट है साइज का है 1000, मिनिमम लॉट साइज है $1000। तो $1000 के एक्सपोजर को आप मेंटेन कर सकते हो। मतलब ग्राहक से आपको $3700 आने वाले हैं, तो ये आपको 3000 या 4000 इस राउंडिंग में करना पड़ेगा। लेकिन $5 लाख आने वाले तो उस आदमी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, 1000 में मेंटेन इजीली हो सकता। डन। आगे है एक दिनेश भाई का क्वेश्चन है, इज इट फिजिबल फॉर शॉर्ट पीरियड? ये मैंने दे दिया आंसर। हरे कृष्ण जी का, अच्छा यही क्वेश्चन यही थे, हाँ यही थे। फेयर इनफ, तो बस मैं चल रहा हूँ अब आगे। फिर जिग्नेश भाई, इज इट पॉसिबल टू बाय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म? यस, मैंने आंसर दे दिया है। व्हाट इज द लॉट साइज? 1000, आंसर दे दिया है। आगे जयदीप भाई का क्वेश्चन है, बेसिकली वी आर ज्वेलर्स इन दिस वेबिनार, प्लीज शेयर सम पॉइंट्स ऑन गोल्ड। तो मैं समझ सकता हूँ, मेरा जो एक्चुअली टॉपिक था जयदीप भाई, वो मेन करेंसी हेजिंग था, इंटरनेशनल मार्केट की हेजिंग का। पर फेयर इनफ गोल्ड के लिए मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है। एक बार मैं उसके ऑप्शंस को देख करके आपको अपना नंबर जरूर दे सकता हूँ। आप मुझे 2-3 दिन में कॉल करें तो मैं शायद बता सकूंगा कि ये का यही काम गोल्ड सिल्वर में कैसे हो सकता है। तो मैं लास्ट में अपना नंबर आपको देता हूँ और फिर अपन टच में रह के गोल्ड का मैं आपको आइडिया दे सकता हूँ। मुझे अभी गोल्ड का पूरा आइडिया नहीं है। रशिक का क्वेश्चन है, TASM पैनलिस्ट फॉर, नहीं ये कुछ क्वेश्चन नहीं है, एक मिनट। सेम इज इट इन गोल्ड, थैंक्स फॉर ऑल इन्फो, ओके। नीलेश भाई का है, हाउ डू वी डिसाइड विच ऑप्शन टू बाय एज वी आर नॉट श्योर अबाउट मार्केट कंडीशन? सो नीलेश भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने कि हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा ऑप्शन बाई करना है, क्योंकि हमको नहीं पता मार्केट की कंडीशन क्या है। तो इंश्योरेंस की जरूरत इसीलिए ही पैदा हुई थी क्योंकि हमको पता नहीं है कि मार्केट की कंडीशन क्या है। ये इंश्योरेंस लेने को इसीलिए आ रहा है। अगर मार्केट पता ही है तब तो इंश्योरेंस की जरूरत ही नहीं है ना। तो मुद्दा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बाई करना है, तो हमेशा जिस लेवल पे अपन काम कर रहे हैं उसके आजू बाजू का ही ऑप्शन बाई करना है। मतलब फॉर एग्जांपल मान लो डॉलर अभी 76 चल रहा है, तो आप एक्सपोर्टर हैं तो 76 का पुट बाई करेंगे, आप इंपोर्टर हैं तो 76 का कॉल बाई करेंगे। तो एट द मनी पे ही काम करके आपको आगे चलना है। तो आपको उसी लेवल से हेजिंग मिल गई। इज दैट एनी डिफरेंस बिटवीन बोथ प्राइजेस, आई मीन एक्सचेंज प्राइजेस और मार्केट प्राइस? तो नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है परेश भाई का कि भाई जो एक्सचेंज का प्राइस है और जो मार्केट प्राइस है उन दोनों में डिफरेंस है क्या? तो नहीं है, वो दोनों के दोनों सेम है। आप डिसीजन ले सकते हो एक प्राइस सुनने के बाद में, आप बता सकते हो कि मुझे ये खरीदना है कि बेचना है। इतना ट्रांसपेरेंट है। मीनिंग समझ में आया? मतलब भाव बता दिया गया आपको कि भाई ये कॉल का भाव ये चल रहा है, उसके बाद आप बोलो अच्छा ये भाव चल रहा है तो मेरा खरीद लो, तो भी वही भाव में खरीदा जाएगा। तो ये भाव चल रहा है तो मेरा बेच दो, तो उसी भाव में बेचा जाएगा। तो वो इतना स्क्रीन बेस्ड प्राइस है इसलिए तुरंत दिखता है। डज RBI अलाउ फॉरेक्स ट्रेडिंग और हेजिंग टू ऑल? आर देयर एनी रिस्ट्रिक्शन? हार्दिक भैया, सो जो लोगों का फॉरेक्स मतलब इंटरनेशनल मार्केट का ऑलरेडी ट्रेडिंग है, जो इंपोर्टर एक्सपोर्टर है, वो पूरा का पूरा 100% हेजिंग कर सकते हैं। हेजिंग को प्रमोट करना गवर्नमेंट का फिलोसॉफी है, रिस्ट्रिक्ट करना नहीं। क्योंकि उनको ये पॉइंट है कि एक जेम ज्वेलरी वाला व्यक्ति जेम ज्वेलरी के बिजनेस से कमाए, डॉलर के बिजनेस से नहीं कमाए। तो आप एकदम फुल्ली अलाउड हैं, पूरा का पूरा आप अच्छे से हेजिंग कर सकते हैं। इंडियन मार्केट उसके अंदर में आपका केवाईसी होता है, केवाईसी होकर के रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आपके अकाउंट में पूरी ट्रेडिंग होती है और वो पूरी की पूरी ट्रेडिंग आप इनकम टैक्स के अंदर में क्लेम भी कर सकते हैं। तो पूरा का पूरा एकदम क्लियर रास्ता बनाया हुआ है जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और इसका टैक्सेबिलिटी भी पहले से क्लियर किया हुआ है, वही बिजनेस इनकम गिना जाता है इसको या बिजनेस लॉस गिना जाता है। तो आपस में अपने आप ही हेजिंग हो रहा होता है आपकी पोजीशन के साथ। अगला क्वेश्चन है मिस्टर जे का, फॉर इंपोर्टर इफ आई बाई $1 lakh प्रोडक्ट ऑन 3 months टर्म, सो बिटवीन कॉल एंड पुट विच इज द बेस्ट ऑप्शन? सर यदि आप इंपोर्टर हैं तो आपको कॉल ऑप्शन ही काम का है, पुट आपके लिए काम का नहीं है। कॉल आपको ऊपर की साइड का इंश्योरेंस देता है। तो जब आप इंपोर्ट करते हैं तो आपको कॉल ऑप्शन बाई करने को आएगा और जो व्यक्ति एक्सपोर्ट करता है उसको पुट ऑप्शन बाई करने को आएगा। तो इंपोर्टर है या एक्सपोर्टर है उसके ऊपर डिसाइड हो जाता है कि आपको कॉल में एक्सपोजर लेना है या पुट में। मीनिंग रिस्क कौन सी साइड की है। यदि भाव के बढ़ने से आपको रिस्क आती है तो आप कॉल बाई करेंगे
और यदि डॉलर के भाव के टूटने से आपको रिस्क आती है तो आप पुट बाई। मिस्टर प्रियकांत का क्वेश्चन है, हाउ वी कैन गेट एडवाइस इन फ्यूचर, कैन यू अवेलेबल और वी हैव टू पे एनी चार्जेस? तो फॉर श्योर फिन आइडियाज का जो मेन ऑब्जेक्टिव ही है वो है कि किस तरीके से मार्केट में अपने कस्टमर्स की हेजिंग की पोजीशंस को अच्छे से प्रमोट कर सके और उनको एडवाइस कर सके। तो वी प्रोवाइड एडवाइस एंड वी चार्ज फॉर दैट। तो जो आप ट्रांजेक्शन करते हो उसके ऊपर में जो ब्रोकरेज होती है वो हमको मिलती है और ट्रांजेक्शन आपके अकाउंट में होता है। तो इस तरीके से आपको ये पूरी की पूरी एडवाइस मिलती है और हम लोग एडवाइस करते हैं टाइम टू टाइम क्लाइंट का एक्सपोजर देख करके कि वो आपको अभी क्या करना चाहिए और कितना पोजीशन पे करना चाहिए। In case we are hedging profits, Mr. Jignesh का क्वेश्चन है, in case we are hedging profits are ours, but how will then NSE will survive? अच्छा, तो एकदम लॉजिकल क्वेश्चन है कि भाई अगर आपने तो बोल दिया ऐसा कि फेवर में गया तो प्रॉफिट हमारा और नुकसान में गया तो लॉस हमारा, नहीं तो वो NSE कोई धर्म का काम थोड़ी करने बैठी है, तो उनको कैसे सरवाइव होता है? तो बहुत अच्छे से समझना, आप उसके लिए प्रीमियम चुकाते हैं और वो प्रीमियम उनकी कमाई होती है। ये एग्जैक्टली जैसे अपन इंश्योरेंस खरीदते हैं, तो क्या मीनिंग हुआ? यदि नुकसान होता है तो हमको मिल जाएगा क्लेम, और यदि नुकसान नहीं हुआ तो हमारा कुछ नहीं गया, प्रीमियम गया। तो यहाँ पे भी आप वो प्रीमियम चुकाते हैं, दैट प्रीमियम बिकम्स योर कॉस्ट, और यदि आपको नुकसान होता है तो वापस रिफंड आ जाता है, मतलब जो आपको नुकसान हुआ उतना वापस क्लेम मिल जाता है, और यदि नुकसान नहीं हुआ तो आपका प्रीमियम चला गया। तो नेट नेट लॉन्ग टर्म में गिनते हैं तो नेट नेट ऑलमोस्ट इक्वल ही हो रहा होता है। पर इंश्योरेंस लेने से फायदा होता है, जैसा मेडिक्लेम लेने से फायदा होता है, जो मैंने समझाया था कि मेडिक्लेम मैंने लिया तो मैंने प्रीमियम चुका दिया। अब यदि इस साल कोई घर में बीमार पड़ेगा तो क्लेम मिलेगा, नहीं बीमार पड़ा तो प्रीमियम गया, अगले साल फिर गया, तीसरे साल फिर गया। पर 5वें 6ठे साल में घर का एक सदस्य बीमार पड़ता है, हॉस्पिटल जाता है, तो जो 5-6 साल प्रीमियम चुकाया था वो सब कवर करके ले आता है। तो नेट जब लॉन्ग टर्म का हिसाब किताब बनाते हैं तो पता चलता है कुछ पैसा पे नहीं किया, मेडिक्लेम के नाम पे दिया था और वापस क्लेम के नाम पे आ गया, दिया था वापस क्लेम के नाम पे आ गया। पर मेडिक्लेम लेने से फायदा ये हो गया कि मुझे श्योरिटी थी पूरे साल कि अब मुझे हॉस्पिटल पे कोई नया बिल फाड़ने की जरूरत नहीं है। जितना पेमेंट मैंने अभी किया है चेक से मेडिक्लेम के नाम का, वही मेरा मैक्सिमम पेमेंट है टुवर्ड्स मेडिक्लेम। तो अब मुझे बाकी चीजों पे फोकस लगाना है, रोज की रोज ये चिंता करने की जरूरत नहीं कि कोई बीमार पड़ गया तो खर्चा आ सकता है। तो द सेम वे ये काम हमारे बिजनेस में होता है। ये हेजिंग करने से प्रीमियम चुकाया, उतनी आपकी कॉस्ट लग गई, देर से फिर वो कवर हो जाएगी, पर आप अब इंश्योर्ड हो गए कि आप पूरा फोकस लगाओ बिजनेस के ऊपर, बिजनेस कैसे बढ़ाना है उस पर। करेंसी अपना कुछ बिगाड़ने वाली नहीं है, शायद हुआ तो बेनिफिट दे देगी। हाउ इंटरनल फ्लक्चुएशन इज बेनिफिशियल टू एक्सपोर्टर? तो एमआरआर का क्वेश्चन है कि इंटरनल फ्लक्चुएशन कैसे बेनिफिट देता है। तो समझना, हर महीने का सेटलमेंट हो जाता है। मानो आपने 70 रुपए का भाव था और आपने 70 रुपए के अंदर में एक्सपोर्ट किया $1,00,000 और आपने 70 रुपए की हेजिंग ले ली। इसका मतलब यदि डॉलर 70 से टूटा नीचे आया, 70 से नीचे गया तो डिफरेंस मिल जाएगा, और यदि ऊपर गया तो आपको नुकसान नहीं है। अगले महीने में 70 का डॉलर 72 हुआ, 72 हुआ तो अब आपको वर्चुअली तो प्रॉफिट हो रहा है, अब क्योंकि अब डॉलर जो आएंगे आपके हाथ में वो 72 में बिकने वाले हैं। पर जो पहले 70 के डॉलर का हेजिंग लिया था वहां एक्सीडेंट कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि डॉलर बढ़ा, घटता तो आपको क्लेम मिलता, पर घटा नहीं, डॉलर बढ़ गया, तो वो जो प्रीमियम चुकाया था वो आपका प्रीमियम चला गया 35,000 रुपया, आधा % के हिसाब से मान लो 35,000 चला गया। अब अगला महीना जो आया ना, अभी तक डॉलर सेटल नहीं हुए हैं आपके, 3 महीने का डॉलर का टर्म था मान लो पेमेंट का, अभी पहला महीना ही हुआ, पर अब आप डॉलर की अगले महीने की जो हेजिंग लोगे, बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट लाइन अच्छे से समझना, अगले महीने की हेजिंग अब आप 72 रुपीज से लोगे। इसका मतलब अब आपका 72 रुपीज तो मिलना फिक्स हो गया है। आपने बेचा था तब $70 का भाव था, 70 रुपीज का, तो आपको 70 लाख ही मिलने वाले थे, पर बीच में 72 हुआ एक बार जनवरी के एंड में, तो अब आपका 72 लाख फिक्स हो गया कि उतना तो मिलेगा ही। अगली बार आपने 72 का हेजिंग लिया, मान लो उसके अगले महीने में डॉलर 73 हो गया, फिर प्रीमियम लग गया, पर अब अगला महीना अब आपका 73 फिक्स हो गया है। इसका मतलब अब आपको 73 लाख तो मिनिमम मिलेंगे ही। डॉलर और बढ़ गया तो ज्यादा मिल सकते हैं, पर घटा तो 73 मिलेंगे ही। और उससे अगला लास्ट मंथ था, जिस मंथ पेमेंट आने वाला था,
मान लो वापस 73 वाला डॉलर 70 आ गया, तो रियल में जहां से आपने जर्नी शुरू की थी 70 के भाव पे एक्सपोर्ट किया था, पेमेंट जिस दिन आया उस दिन भाव 70 ही था, लेकिन आपने फरवरी मंथ के एंड में 73 वाला डॉलर का प्रोटेक्शन ले लिया था। वो प्रोटेक्शन लेने के कारण उस महीने में डॉलर 73 का 70 आया तीसरे महीने में। तो क्योंकि भाव टूटा तो डिफरेंस आपको मिलेगा। तो यहां से हमारे हेजिंग से आपको 3 लाख रुपए वापस मिलेंगे, क्योंकि भाव 3 रुपया टूटा है। और वहां डॉलर जो मिले वो तो 70 के भाव पे ही मिल रहे हैं, वो 70 में पेमेंट होएगा आपको, तो 70 लाख वहां से मिले, 3 लाख यहां से मिले हेजिंग से, आपको ओवरऑल 73 lakhs मिल गया। दिस इज द वे हाउ यू गेट इंटरनल फ्लक्चुएशन बेनिफिट इन योर एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन, MRR। आई थिंक मैंने रिप्लाई एकदम अच्छे से समझा दिया आपको। कुछ क्वेश्चन हो तो आगे फिर पूछ लेना। फिर से जे का क्वेश्चन है, विच इज बेटर ऑप्शन फॉर इंपोर्टर? कॉल, अच्छा आंसर दे दिया इसका। फिर MRR का क्वेश्चन है, इफ वी आर गेटिंग एडवांस रेमिटेंस फॉर एक्सपोर्ट देन इज इट रिक्वायर्ड? तो अब आपको एडवांस रेमिटेंस मिल गया है एक्सपोर्ट का, तो एक्सपोर्ट का आपको पहले पेमेंट मिल गया है, वो पेमेंट को आपने एनकैश कर लिया है। यदि अगर आप उस पेमेंट को एनकैश कर लेते हो एडवांस में ही, तो अब आपका डॉलर में एक्सपोजर खड़ा नहीं है, तो अब आपको हेजिंग की जरूरत नहीं है। हेजिंग की जरूरत उसको है जिसके जीवन में डॉलर नाम की चीज या तो लेनी बाकी है या देनी बाकी है, तब डॉलर का फ्लक्चुएशन मेरे लिए इंपैक्ट कर रहा है। यदि वो डॉलर रुपये में कन्वर्ट कर ही लिया मैंने, तो अब आपको कोई इंपैक्ट नहीं होने वाला। तो रिस्क होगी तो आपको मैनेज करना है। थैंक यू हरीश भाई, थैंक्स संजय भाई कॉम्प्लीमेंट के लिए। आगे समकित, वेयर आई हैव टू रजिस्टर फॉर डूइंग दिस हेजिंग? तो मैं अपना यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, एक 9374985600। आप यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। दे विल हेल्प यू आउट टू अंडरस्टैंड इट इन बेटर वे कि क्या क्या आपको करना पड़ेगा। इसका एक सिंपल KYC होता है, वो आपको करवाना होगा। KYC के बाद में एक्सचेंज में आपका अकाउंट खुल जाता है और उसके बाद में आप ये हेजिंग का ट्रांजेक्शन कर सकते हो। इसकी पूरी एक ऑनलाइन ऐप बनी हुई है, तो उधर में आप कोई रमेश भाई के साथ एक्सपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो उनको फोन करते हो, हाँ भाई ये एक्सपोर्ट वाला ऑर्डर डन है, और इधर फोन रखा और इमीडिएटली ऐप में एंट्री कर देने का, इतना डॉलर एक्सपोर्ट का मैंने काम किया है, और इमीडिएटली वहां पे हेजिंग हो जाएगी। और जिस दिन आपका पेमेंट रिसीव होए, वापस एंट्री करने का ऐप में कि इतना पेमेंट आ गया है, इमीडिएटली वो सौदा स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, और उतने टाइम के बीच का जो फ्लक्चुएशन है वो आपका हो गया। ओके, इफ यू वांट टू वॉच द ऑप्शन प्राइस, एनी वेबसाइट और ऐप इज अवेलेबल? यस, वेबसाइट अवेलेबल है शैलेश भाई। आप यही 9374985600 पे मैसेज करके डाल देना ये रिक्वेस्ट, वो आपको लिंक भेज देंगे। जयदीप वदार, आई विल गिव यू अ कॉल इन 2-3 days। ओके, थैंक यू। अंकित, हाउ मंथ वाइज हेजिंग बेनिफिट गेट इफ टेक हेजिंग फॉर 3 months? ये मैंने आंसर दिया है, वो मिस्टर JRR का जो क्वेश्चन था उसमें। जनरली इन LC पेमेंट फॉर इम्पोर्ट, एग्जैक्टली जो एक्सपोर्ट का काम है सेम वो का वही हेजिंग का तरीका इम्पोर्ट में भी होगा। इंटरनल फ्लक्चुएशंस होंगे, बेनिफिट में हुआ तो आपका लॉक हो जाएगा, अनफेवरेबल हुआ तो आपको क्लेम मिल जाएगा, और उसी वे में वो चलता जाता है। Bhawmik, is there any statistical tool or model available for making hedge position? Yes, इसका भी एक टूल अवेलेबल है जिसके थ्रू अपन डिसाइड कर रहे होते हैं कि कितनी हेजिंग आपको करनी होगी। वो जब भी अपन कभी 1-to-1 मीट करेंगे या इसका ऑनलाइन कोई एक एडवांस कभी जिल्पा में और एडवांस कोई सेशन अपन रखेंगे, तो एट द टाइम वी विल ट्राई टू एक्सप्लेन दैट कि कितना हेजिंग कैसे करना है, वो कैसे समझना होगा। इज देयर एनी स्टैटिस्टिकल? ये मैंने आंसर दे दिया है। तो वापस संजय भाई का क्वेश्चन है, व्हाट इज बेनिफिशियल मोर, कॉल परचेज और पुट सेल? अच्छा, ओके ओके, अब मेरे को समझ में आया आपने कॉल और पुट क्यों पूछा था। तो भाई पुट सेल एडवांस क्वेश्चन है, और पुट सेल वाला थियरी अभी यहाँ पे यूज नहीं करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये उन व्यक्तियों के लिए सेशन रखा गया है जो व्यक्ति का मुख्य बिजनेस उनका जेम्स ज्वेलरी है। उन व्यक्तियों को उनके अपने बिजनेस पे फोकस करना है, ना कि टाइम के पैसे कमाने। तो मेरा पॉइंट है, ये इंश्योरेंस लेने का पर्पस होना चाहिए। यहाँ पे इंश्योरेंस कॉस्ट नहीं पड़ रही है लॉन्ग रन में, तो परचेजिंग वाला जो ट्रांजेक्शन है हेजिंग के लिए वो ही यूज करना चाहिए संजय भाई। और ये जो सेलिंग वाला काम है वो ऑल टुगेदर अलग व्यू के लिए काम करना हो तो वो उसको अलग ही पर्पस के लिए उसको यूज करो, बिजनेस की हेजिंग के लिए उसको यूज मत करो। सम बैंक्स हैव हेजिंग फैसिलिटी, दिनेश भाई का कहना है हो सकता है आपके पास में यदि कोई ऐसी बैंक है तो उनसे भी आप बात कीजिए, और आप हमारे से भी बात कर सकते हैं, आप कंपेयर भी कर सकते हैं कि क्या चीज अवेलेबल है।
आईफोन से क्वेश्चन है, आई पे $3 lakh पे 90 days, so today I hedging, then dollar rate 72 after 3 months, I am in profit or loss. तो आप एक्सपोर्टर है, मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूं, और यदि $76 का 72 हो गया तो यहाँ प्रॉफिट का मतलब ये है कि जितना डॉलर टूटा उतना डिफरेंस आपको वापस मिल गया, मतलब आपको 76 lakhs वापस मिल गए। तो बाजार 72 चल रहा है, अगर आपने ये हेजिंग की होती तो आपको आपका 76 lakhs ही वापस मिलता। तो इसका मतलब जितना नुकसान हुआ वो वापस मिल गया, वो प्रॉफिट हुआ। इंश्योरेंस यही बोलते हैं ना, इंश्योरेंस का मतलब गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो जितने का क्लेम आया उतना वापस मिल गया, तो आपका 76 lakhs आपके लिए फिक्स है, वो तो मिलेगा ही आपको। ओके, कैन यू शेयर योर सेल नंबर? सो मैं अपना सेल नंबर डाल देता हूं, ये मेरे कलीग का सेल नंबर है, वैसे शैलेश का, आप उससे बात करके फिर आगे वो अपने आप समझ लेगा और आगे कनेक्ट कर देगा मुझे जहां जहां जरूरत होगी, और अधिकतर क्वेश्चन के आंसर शैलेश आपको खुद दे पाएगा। If I book few dollar to sell for next month rate, is this call or put? If I book few dollars to sell, इसका मतलब आपको डॉलर मिलने वाले हैं और आप उस डॉलर को सेल करने वाले हैं, तो आपको एक्सपोर्ट करना है तो आपको पुट ऑप्शन, मतलब आपने पेमेंट रिसीव करना है तो आप पुट ऑप्शन के थ्रू हेजिंग करेंगे इसको, मिस्टर जे। फिर है AGU के लिमिटेड, ओके, इज योर सर्विस प्लेटफॉर्म अवेलेबल ऑनलाइन? यस, इट इज ऑनलाइन। Or can you recommend how this can be done online? Can this also be done for gold like with MCX? MCX वाला क्वेश्चन का आंसर देने में मेरे को ज्यादा लोगों का क्वेश्चन होगा तो मैं 2 घंटे में भी आंसर दूंगा, एक बार मुझे ढूंढना पड़ेगा फिर दूंगा। करेंसी वालों के लिए एकदम क्लियर प्लेटफॉर्म रेडी है, जिनका भी करेंसी फ्लक्चुएशन का रिस्क चाहिए उसके लिए पूरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रेडी है। मिनिमम कितना दिन का हो सकता है? मिनिमम 2 दिन का भी हो सकता है, 1 दिन का भी हो सकता है महेश भाई, जितने दिन का भी करना हो हेजिंग मिल सकती है। थैंक यू हार्दिक भाई, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। परेश भाई का क्वेश्चन है, मैम मैं सब क्वेश्चन लेता जाऊं ना, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, है ना? नहीं प्लीज प्लीज। Fair enough, yeah. An insurance premium and loss exchange in which the insured pays the insurer premium for low value losses, and the insurer pays the same dollar back total he insured after subtracting expenses. परेश भाई को एक बार मैम अगर आप कर सकती हो तो अनम्यूट कर देना ना, क्वेश्चन वो समझा सके, मेरे को समझ में नहीं आया, क्वेश्चन बड़ा है। रजत प्लीज अनम्यूट मिस्टर परेश भाई। परेश भाई को एक बार अनम्यूट कर दीजिए। परेश भाई रेज हैंड करो तो मैंने ऊपर देखा सो तो मैं शोधू पड़। परेश आडेसरा राजकोट राइट के परेश त्रिवेदी या परेश आडेसरा राजकोट करके है ये। हाँ अनम्यूट કર્યું છે પરેશ ભાઈ। परेश भाई क्विकली क्वेश्चन पूछ लीजिए, ये आपने क्वेश्चन पूछा है, इंश्योरेंस प्रीमियम एंड लॉस एक्सचेंज डॉलर पुट और बाय के अंदर का जो इंश्योरेंस जैसे गोल्ड में मिलता है, हाँ उसी तरह डॉलर के अंदर ऐसी कोई सुविधा है कि नहीं? हाँ फिर से बोलिए, पुट बाय करके। हाँ, पुट और बाय के ऑप्शन के अंदर जो इंश्योर रहता है हमारा गोल्ड के जो भी सौदे पड़ते हैं यहाँ पे, उसी तरह डॉलर के अंदर ऐसी कोई सुविधा है कि नहीं? ना मैं नहीं समझा, एक बार वापस बोलो क्वेश्चन। पुट और बाय के जो ऑप्शन रहते हैं, पुट और बाय क्या होता है? पुट और कॉल। हाँ सॉरी, पुट और कॉल के, ऐसे ही डॉलर के अंदर ऐसी कोई इंश्योरेंस वाली सुविधा है कि नहीं? यस यही है, इतनी देर से जो सेशन चल रहा है वो यही चल रहा है, एग्जैक्टली वही अवेलेबल है, कॉल और पुट डॉलर में भी अवेलेबल है और बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ अवेलेबल है। ओके सर, डन, थैंक यू। वेलकम। या बॉमिका क्वेश्चन, आई नीड नेम ऑफ दैट मॉडल, जो रखना है रख दो, अभी नाम नहीं किया इसका। फिन आइडियाज है अपनी कंपनी का नाम, डॉलर का अभी ये स्ट्रेटेजी का नाम कुछ भी नहीं डाले। अंकित मित्तल थैंक्स, ओके। राजेश भाई, करेंसी में बिना हेजिंग ओनली ऑप्शन में काम करके कॉल पुट में वर्क करते हैं। सो हम लोग नहीं करते हैं, हमारा पर्पस प्योर इंपोर्टर और एक्सपोर्टर्स को हेजिंग कराने का है। यदि वो कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एक्सपोजर नहीं करते हो तो उनको खाली वो करेंसी की तेजी मंदी वाले काम जो है वो हम लोग नहीं करवाते हैं। तो जिसको हेजिंग का पर्पस हो प्योर, उसके लिए हम लोग सर्विसेज दे पाते हैं। थैंक यू नीलेश भाई, थैंक्स फॉर दी कॉम्प्लीमेंट।
जिग्नेश भाई, वेयर इज योर ऑफिस? अच्छा, सूरत में है हमारी ऑफिस, सो वी आर लोकेटेड एट सूरत। आप नेट पे भी फिन आइडिया सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा finideas.com और सब इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। Govind, Okay. we will take additional 2 questions and then we'll conclude the session. And मैं रिक्वेस्ट करूंगी मेंबर से कि अभी और कुछ भी ज्यादा नेक्स्ट 2 क्वेश्चन वी विल सर्टेनली टेक, बट उसके बाद कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो दे कैन सेंड इट टू अस, और आपने ऑलरेडी आपने कांटेक्ट डिटेल्स भी दिए हैं, दे कैन रीच यू ऑफलाइन इफ पॉसिबल। डन। तो राजेश भाई के क्वेश्चन है, करेंसी में बिना हेजिंग ओनली ऑप्शन में काम करते हैं, फ्यूचर के साथ काम। चलो ये मैंने आंसर दे दिया था कि हम लोग केवल हेजिंग का ही काम करते हैं। सचिन सोनी, आई एम एन ऑनलाइन सेलर, माय ईयरली बिजनेस अबाउट दिस, व्हाट टू डू फॉर गुड रेट्स। सो आप अगर वो सेलर हैं और आपका ईयरली बिजनेस $50,000 का है तो भी वो काम सेम। ये इसमें मजेदार पॉइंट ये है कि $1,000 का लॉट है तो 50,000 वाला व्यक्ति हो या 50 लाख वाला हो या $5 करोड़ वाला हो, हर व्यक्ति का काम इजीली हो सकता है यहाँ पर। तो सब काम इसमें किया जा सकता है और वो गुड रेट्स का मतलब है सबको एक ही रेट मिलने वाली है। 5 करोड़ वाला होलसेल वाला व्यक्ति है उसको भी वही रेट में काम करना है और छोटे ट्रांजेक्शन वाले को भी वही रेट में काम करना है। लास्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंटली आई बुक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर नेक्स्ट मंथ फॉर $350,000 at 72.30, but presently USD is 76.30. I have no any import forward, तो व्हाट कैन आई डू? तो अगेन इसके लिए अब आपको एक बार पर्सनली बात करनी होगी, एग्जैक्ट क्या सिचुएशन है, कितने डॉलर ओपन खड़े हैं और भी कोई डॉलर बाकी है क्या, और पेमेंट कब आने वाला है, कितने टाइम पे, ये सब कुछ समझ करके वी कैन एडवाइज यू कि आपको अभी आगे इसमें क्या करना चाहिए। सो मेरे को इतना ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ऑलमोस्ट मैंने ऐसे भी अधिकतर सब क्वेश्चन दे दिए हैं, मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हो भी गए हैं वैसे। बस एक ओपन में है, मिस्टर संकीत का है, वो आप एक लास्ट ले लीजिए। मिस्टर संकीत का है, ओके। इफ आई एम रिसीविंग $1 lakh for 3 months and I have to pay $1 lakh on same day, should I get more profit in this case by hedging? So देखो दोस्त संकीत, अच्छा क्वेश्चन आपका। यदि आपको जितना रिसीवेबल है और जितना ही पेएबल है अगर वो दोनों है ना तो आपका हेजिंग का कॉस्ट और कम हो जाएगा, लॉजिकली ऑलमोस्ट नलीफाई हो जाएगा और आपकी रिस्क भी कवर हो जाएगी। क्योंकि अपना क्वेश्चन मैंने जो लास्ट में बताया था, अपना पॉइंट सिंपल है, डॉलर नाम की कितनी नेट चिड़िया जो है वो आपके अकाउंट में आउटस्टैंडिंग है उतनी ही रिस्क है। तो अपन सबसे पहले इनको अपने आप ही नेट ऑफ करेंगे कि कितना अपना नेट ऑफ कितनी रिस्क खड़ी है, जितनी नेट रिस्क खड़ी है उतना ही हेजिंग करना है। तो कई बार देखो इससे बहुत बड़ी कॉस्ट बचेगी। नॉर्मली बैंकिंग ट्रांजेक्शन में हम फॉरवर्ड हेजिंग करते हैं तो वो इंपोर्ट हेजिंग को अलग तरीके से हेजिंग करवाते हैं हमारे से और एक्सपोर्ट को वापस हेजिंग कराते हैं, तो दोनों जगह पे कॉस्ट लगती है, जबकि रियल में नेट ही हेजिंग करने की जरूरत आने वाली है। तो अपन उसको समझ सकेंगे जब भी अपन कभी पर्सनली बात करेंगे। तो थैंक यू परेश भाई, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। राजेश भाई थैंक यू की बात की क्लैरिटी, थैंक यू। सो थैंक्स अ लॉट एवरीवन, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स आल्सो, थैंक्स अ लॉट। આજે આપણે વોટ ઓફ થેન્ક્સ કરીને આને કન્ક્લુડ કરીશું। જે आप सब पार्टिसिपेंट्स है અને खास કરીને गोविंद सर, मैं आपको थैंक्स कहना चाहता हूँ, आपने इतना टाइम निकाला और 1 by 1 सारी क्वेरीज आपने अटेंड की और उनका बहुत सेटिस्फैक्टरी लेवल पे आपने आंसर दिया है। वी आर वेरी होपफुल कि हमारी इंडस्ट्री में जो फ्लक्चुएशन के कारण मार पड़ती है, जो आपने जैसे बताया अननोन वायरस की वजह से अपने को सफर करना पड़ता है, एक हेजिंग, ये डॉलर का फ्लक्चुएशन भी इज काइंड ऑफ वायरस दैट वी हैव टू सर्वाइव इन आवर बिजनेस। तो आपने ये जो जानकारी दी और आपने जो अपना टाइम निकाला और हमें एडवाइस की और गाइडेंस दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। આજે મોટી સંખ્યામાં બધા પાર્ટિસિપન્ટ્સ જોડાયા એ માટે આપ સર્વે પાર્ટિસિપન્ટ્સને ખૂબ ખૂબ આભાર। આપણને આના પછી એક ફીડબેક ફોર્મ ગ્રુપમાં નાખવામાં આવશે, એ ફીડબેક ફોર્મનો આન્સર આપ આપશો તો આપણને આજની જે બી પ્રેઝન્ટેશન છે એ આપણને મોકલવામાં આવશે અને એમાં જ ગોવિંદભાઈના કલીગનો નંબર પણ હશે જેને તમે કોન્ટેક્ટ કરીને તમારું ભવિષ્યનું કંઈ પણ કારોબાર હશે કે વ્યાપાર રિલેટેડ ગાઈડન્સ હશે મેળવી શકશો। થેન્ક યુ સો મચ, થેન્ક યુ સો મચ એવરીવન।
Thank you, Govind ji. Thank you all the participants. Thank you so much. And finally, last में thanks all of you for giving me the opportunity to speak over here. Thank you, special thanks to नीरो भाई. उन्होंने opportunity खड़ी की कि गोविंद you should speak on this level, so on this topic. So नीरो भाई, thanks a lot for the Niro same. bhai, if you are there, thank you so much from GGPC. Thank you. थैंक्स. मैंने शैलेश का नंबर आपके यहाँ पे डाला है, और अगर आपको कुछ बात करनी हो तो आप शैलेश से बात कर लीजिएगा. किसी को जरूरत होगी वो अपने आप मेरे पास पहुंचा देगा. थैंक यू. Thank you, Govind ji. थैंक्स.